बोला फैकल्टी भाग गई है। मैंने कहा भाई फिर क्या करना है, ढूंढो कोई दूसरी ढूंढो। कह रहे जी कोई नहीं आ रही। दूसरी बात बोला, कह रहा अब यहाँ राड़ा भी हो गया है। मैंने पहली बार सुना था वो वर्ड। मैंने कहा क्या राड़ा हो गया भाई? कह रहा जी ये दूसरी बार हुआ है। मैं रोहिणी रहता था, विश्वास नगर क्लास थी, ड्राइवर था नहीं, गाड़ी वाड़ी चला के भागता हुआ गया मैं। तो क्राइसिस वहां से भी सीखी कि क्लास लेनी कैसे है। तो आज ये राड़ा करने वाला ये, इसको तो हम बाद में देखेंगे। बट somehow Issued has given me enough learning how to handle the crisis. So we are now tuned in for the crisis. Friends, let me tell you just in briefing that the block assessment which is being introduced from 1st September 2024, those who are more than 20 years in practice, they know it that prior to 1st July 1995, the search assessment and non-search assessment, there used to be no difference. But 1st July 1995, the government brought a new chapter for the search assessment. In short, we used to call it block assessment. So they used to assess the entire income for 10 years, which is found as undisclosed. Few of the salient features of that, it is not necessary that you incur the loss and then you adjust. Because that is a block of 10 years which is required to be assessed. So even if you have incurred the losses in the future year and you have a profit in previous year, that was getting the adjustment in the undisclosed income segment. Lot of other things have been settled by the court, and this block assessment worked well till 31st May 2003. Thereafter, from 1st June, the settled law was made a different, that is called section 153, a new chapter have been added, 153A BC. Now in this, it started with 6 years of assessment instead of 10. And those 6 assessment years are to be assessed separately each year. Then the question came whether the disclosed income or the undisclosed income is required to be assessed in the block assessment due to search. In that case, the Kabul Chawla leading judgment, which is followed by now Supreme Court judgment in Abhisar Builders, have settled the law that 153A BC, if the abatement has not happened, then in that case, the assessment of undisclosed income is to be done only in 153A BC. Disclosed income you cannot touch. This continued for another few years, and the way that is being, you can say, settled, and till 31st March 21, this 153A BC regime continued. From 1/4/21, again they have brought the same scheme of 148, and then there was certain changes from that normal 148, the way back prior to 95. In such assessments, only if something is found, except for the current year, the old year are opened only if there is something which is found. Now, 21 to 31st August 24, this is going on, wherein they will assess 3-year minimum plus 1 current year, and if they find something more, they will assess for 10 year more, 50 lakh of rupees. The threshold limits are there.
asset is being defined, and so on. But somehow, the September 24, from this budget, they have once again introduced the block concept of the assessment, and they have also removed some of the things which have been settled there. What I told you, that loss you incur later on, and you have a profit of undisclosed income, you have a positive income that you adjust. So they have tried to change it. The period of the block assessment is also 6 years. However, when Dr. Girish Ahuja will tell you about the 148, there the period is little 1 year less. Then same one consolidated assessment is to be made for it, and the rate of taxation is 60%. Lot of issue of controversial things which Dr. Girish Ahuja will deal it. No interest will be charged under 234 ABC. There will be no reference to TPO, TP adjustment, and also the 144C, that is DRP, that is also taken, as the stepney is required to work only till such time the original tire comes into place. With this, thank you very much. Now I would like to welcome tax guru and mentor of Voice of CA Dr. Girish Ahuja sir, for his much awaited deliberation on A to Z of direct taxes, Union Budget 2024. Welcome, sir. Good morning to everyone. Sitting on the dais, our chief guest and past president of the Institute of Chartered Accountants of India, Dr. C.A. Amarjit Chopra ji, our principal CCIT of National Faceless Assessment as well as National Faceless Appeal, CCIT, Mr. D. Past chairman of the past Central Council member of the Institute of Chartered Accountants of India. अच्छा किया छोड़ दिया. I always say, why do they fight election? I fail to understand. यहाँ बैठे हैं दीपक गर्ग जी, ये भी लेने आए इलेक्शन के लिए. पीछे चुक बैठा है, वो भी इलेक्शन के लिए आए हैं. ये अभिषेक राजाराम जी हैं, ये भी इलेक्शन के लिए आए हैं. और ऊपर तो बैठे हुए हैं ही हमारे संजय अग्रवाल जी. इनको क्या है? ये नशा है, पैशन है. और मुझे भी पैशन है. इनको गालियां खाने का नशा है और मुझे तालियां खाने का नशा है. भाई इतना फर्क है. अदरवाइज सेम है. You cannot say anything. I have told them many times not go for election, but they will not listen. They will never listen. That is positive. So coming back, let us start with the budget, clause by clause discussion. You all know there is section called 222 regarding definition of dividend. 222. 222 clause A, B, C, D, E. We are already aware of, and that is taxable in the hands of the shareholder. Earlier, it was not taxed in the hands of the shareholder, that was paid tax in the hands of the company. I remember when we were redrafting the law. अब redraft फिर भी होगा, मुझे नहीं पता. हमें भी 6 महीने दिए गए थे और ये भी 6 महीने दिए गए. हमने भी 2.5 साल लगाए थे और ये भी 2.5 साल ही लगाएंगे. और फिर आएगा नहीं आएगा, I don't know. Because we have already submitted in 2019 the simplified version where we have more than 550 sections in the Income Tax Act. We gave them with 264 sections without any proviso. Without any proviso. But I don't know the fate of that law. Again, now the redrafting of the law will be there or not. That is time to come. So सीधा करता हूँ. उस पर shift कर दिया था to the shareholder. They said we have now information. Everybody, we have all annual information statement. Everybody will have to show his dividend. Even 1 rupee dividend you have to show now. So that was the idea of doing it. But now there is 222F has been inserted. This is because of abolition of 115QA. Buyback of share. People were going for buyback of share as per section 68 of the Companies Act. There was an advantage of going for buyback of share. In the case of buyback, the company had to pay tax at the rate of 20% plus
12% plus 4%, and the shareholder, in the hands of the shareholder, whatever money was received was exempt under 1034A. Complete exempt under 1034A, paid by the company at the rate of 20 plus 12 plus 4. But if you give dividend, dividend is normally taxable at 30% income from other sources, plus surcharge, plus education. So people who are making money, they are making money, 8% was the minimum difference if you buy the share, buy back the share, or if you distribute the dividend. So everybody took a route of buyback. Everybody took a route. Not even in unlisted, both listed versus unlisted. So the government was aware of that they are trying to play with the section 115 QA because the tax collection is there is less than if it has gone to. So therefore, they introduced section 2, clause 22, subclause F, saying that any amount received from the company on account of buyback of share shall be taxable under section as dividend under section 222F डाल दिया क्या dividend taxable होगा. Simultaneously section 57 डाल दिया, no deduction will be allowed on account of this dividend. ये भी डाल दिया. Simultaneously 194 डाल दिया that company will be under obligation to deduct tax at source like they do it for dividend. तो वहां पर भी वो आ गया that but this is applicable from 1st of October 2024. अभी भी किसी कंपनी ने बाईबैक करना है तो कर सकते हैं 30 सितंबर तक, लेकिन माइंड कीजिए एक साल के बाद, एक साल कम से कम गैप होना चाहिए पिछले बाईबैक्स, क्योंकि मिनिमम एंड यू कांट बाई बैक मोर देन 25. ये तो लॉ ऑफ कंपनीज एक्ट में लिखा है, यहाँ नहीं लिखा है. मैं भी कई कंपनी में डायरेक्टर था और रवि जी भी है, उन्होंने बहुत बाई बैक किए. हमें नहीं पता, हमने नहीं बताया कि ये होना चाहिए. प्लीज डोंट टेक इट दैट वे, बट ऑफ कोर्स बाइक बैक वाज वेरी प्रिविलेज्ड. नाउ द चैप्टर हैज बीन क्लोज्ड. 115 QA गॉन, 1034A gone, and you have to pay tax under section 56 on account of dividend, although it is a dividend under 222F and no deduction of whatsoever is allowed on that buyback. Clear है sir? ये if held not more than 12 months, short term. If held for not more than 24 months, short term. तो उसमें वही है जो listed share थे, अब listed securities कर दिए. Even unit will also be covered under 12 months. Unit, all unit. पहले unit of mutual fund थे, but now it will cover under 12 months. बाकी जितनी भी assets है, maybe gold, maybe any kind of asset. If it is held for more than 24, was also sitting. I said they are going to increase the capital gain, long-term capital gain under 112A from 10% to 15%. And for short-term capital gain, 111A to from 15% to 20%. Nobody agreed with me. Nobody. They said nothing doing. ये नहीं हो सकता. कहा था ना आपने ये नहीं हो सकता. मैंने कहा यही होगा. इस वक्त मार्केट तेज है. संभाल लेंगे वो हमारा अमाउंट. और वो ही किया उसने. अगर ना होता तो आज तो मार्केट ऊपर हो गई. But today it has gone up. Yesterday it went down and then again come up. So मार्केट के बारे में तो वैसे ही नहीं पता होते तो ऑब्जर्व तो कर ही लेंगे. So what has happened now? The question is not only 112A. Now all long-term capital gain, whether from shares or any other, are now taxable at the rate of 12.5%. 10 has been raised to 12.5. जो शेयर्स थे या यूनिट ऑफ इक्विटी रिलेटेड फंड थे और बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट थे, उसमें तो 112A ऑलरेडी कहता था कि दैट यू आर नॉट अलाउड एनी इंडेक्सेशन देयर. वहां इंडेक्सेशन अलाउड ही नहीं था 112A में. और 112A में ये भी कहता था 87A का बेनिफिट नहीं मिलेगा. नाउ व्हाट हैज हैपेंड? नाउ दे हैव सेड proviso 2 of section 48, which allows you indexation if there is a long-term capital gain. It allows you indexation of the cost of acquisition and cost of improvement. That has been done away with. It's not done away with. No, it is up to before 23rd/7 you will be allowed index. So any transfer of a long-term capital asset before 23rd of July, what you call 2024, will be eligible for index cost of acquisition and index cost of improvement.
But any capital gain arising from the transfer of a long-term capital asset on or after 23rd of July 2024 will not be eligible for any indexation, whether of cost or cost of improvement. लेकिन वो अभी भी है that you can assume the market value as on 1st April 2001 as they will. But वहां पर भी एक प्रॉब्लम है. They have said market value as or for 2001 or the stamp duty value if available. Stamp duty value available है तो वो या market value उसमें तो stamp duty value लोगे, otherwise market value लोगे. इसमें भी बहुत ज्यादा dispute हो रहे हैं. When it is wherever available, market value is not available. Stamp duty value is not available in Delhi. In certain places it is available. It is not available in Delhi. It is said wherever available. And if it is not available, then one has to go to the valuation officer. Not not department valuation officer. You can go to the valuation to determine the market value. अब मेरी सजेशन उनको यही होने जा रही है, आज ही करेंगे, कि इसको भी 1 अप्रैल 2007 कर दीजिए, क्योंकि 1 अप्रैल 2007 के बाद ऐसी कोई इंडिया में स्टेट नहीं है जहां पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं है. तो डिस्प्यूट खत्म होगा ना. अभी तो डिस्प्यूट चल रहा है. मैं कहूंगा मार्केट वैल्यू नहीं है, इट इज नॉट अवेलेबल हियर, आई विल टेक मार्केट वैल्यू फ्रॉम वैल्यूएशन ऑफिसर. और जो वैल्यूएशन ऑफिसर है, आपको पता है कैसे मार्केट वैल्यू डिटरमिन होती है. सो माय पॉइंट इज, ये डिस्प्यूट भी सेटल होना चाहिए. कोई कह रहा है इससे नुकसान हो गया, मैं कहता हूं कईयों को बहुत फायदा हो गया. 12.5%. ठीक है, 111 नहीं, 15% एज बी रेज टू 20%. वो तो ये चाहते नहीं है ना, रोज शेयर बेचो और खरीदो और कहो कि हम कमा रहे हैं. कई कहते हैं थोड़ा बढ़ गया 5%, बेच दो, फिर आएगा, फिर 5% बढ़ेगा, फिर बेच दो, खरीदते रहो, बेचते रहो. उसमें भी एक डिस्प्यूट होता था कि ये बिजनेस इनकम है या कैपिटल गेन है. नाउ दे हैव रेज्ड 15% to 20% प्रोवाइडेड एसटीटी हैज बीन पेड. थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन लोग ज्यादा इन्वेस्टर इंटरेस्टेड होंगे टू कीप इट एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. सभी है जो प्योर इन्वेस्टर है ना सर, वो कमा तभी सकता है जब लेकर भूल जाए. ये जो रोज रोज करने वाले हैं ना, वो फिर दफ्तर में ध्यान नहीं रखते. हमारा भी एक पार्टनर है, वो सवेरे 1 बजे से पहले आता ही नहीं है, पूरी मार्केट करके आता है. और उसको भी मैंने बता दिया कि ये बढ़ने वाला है. आज आया नहीं, उसके बेटे का 18th बर्थडे है. मैं कहा आज बढ़ने वाला, नहीं माना. मैंने कहा अब देखियो तेरा मार्केट का क्या है. 12.5, 20%. और वो तो एफ&ओ भी करते हैं. वो तो हमारे इंस्टीट्यूट ने भी अलाउ कर दिया एफ&ओ. आई डोंट नो भाई, कोई जिंदगी में एफ&ओ में कमाता है? द रिपोर्ट ऑफ द रिजर्व बैंक इज 70-80% हैव लॉस्ट द मनी इन एफ&ओ. फिर भी 90% कह लीजिए लॉस. ये लगता है ये भी बीच में है उस 90% में. Sir, nobody has earned money in F&O. It is only if you have a luck you can earn money from anywhere. Otherwise नहीं है. लेकिन उसमें भी तो बढ़ा दिया, एसटीटी बढ़ा दिया. एसटीटी तो उसमें भी बढ़ाया. जो प्रीमियम एंड ऑप्शन है 0.0625 हैज बीन रेज्ड टू 0.1 रेप कर दिया, और दूसरा 0.125 था, उसको 0.2 कर दिया. सो देयर एसटीटी हैज बीन इंक्रीज्ड इन ए केस ऑफ वो वाले जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है. फ्यूचर के लिए एसटीटी इज नाउ 0.2 और उसके लिए 0.1675 जो 25 था 0.1 कर दिया. सो माय पॉइंट इज, नहीं करिए तो अच्छा है ये डेरिवेटिव. बाकी तो लोग बिटकॉइन में भी बहुत कमा चुके हैं, देख लिया था. बड़े बोल मुझे कहते थे बिटकॉइन वी हैव मेड मनी, ही हैज मेड मनी. आई सेड नोबडी हैज मेड मनी इन बिटकॉइन टिल टुडे. सब बेकार की बातें थी. और ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मत करो तो अच्छा है. करोगे तो मेरा पार्टनर भी ऐसे करता है, उससे पूछ लेना क्या करता है. मैं नहीं जानता, आई डोंट नो. मैं किसी में नहीं पार्टनर इस चीज का. चलिए वापस आता हूं. अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं. सपोज यू हैव अक्वायर्ड एन एसेट बिफोर 2001, इट इज लैंड. यू हैव अक्वायर्ड एन एसेट बिफोर 2001, मे बी इट इज लैंड. द प्राइस ऑफ दैट लैंड ड्यूरिंग ऑन 1 अप्रैल 2001 और आज की प्राइस में बहुत डिफरेंस हो गया. इवन इफ यू टेक द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 2001, क्या होगा? मैं कह रहा हूं 10 लाख है. 1 मिनट लो, तो मल्टीप्लिकेशन कितना अलाउड है? 3.63. एम आई राइट? मल्टीप्लिकेशन कितना अलाउड है? 3.63. 3.63 वर्क्स आउट टू 36,30,000. यही होगा करीबन, मैंने जो अगर कैलकुलेशन लग गई. और बेचे को आज 40 करोड़ की.
आज 40 करोड़ की बिक रही है, 30 लाख में आपको 20% देना पड़ता था, और अब उसको 10 करोड़ 10 लाख ही मान लो तो 39,90,000 पे आपको 12.5% देना पड़ेगा। रादर इट इज एडवांटेजियस फॉर दोज हु हैड द एसेट बिफोर 1 अप्रैल 2001। वो एडवांटेजियस है, और जो किसी ने 2-3 साल खरीदी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बढ़ी है नहीं, उसके लिए नुकसान हो गया, क्योंकि वो तो अब उसी में देगा ना जो उसकी है। माई पॉइंट इज दिस थिंग वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। गोल्ड भी उस वक्त 4,500 या 4,600 था, आज गोल्ड की कीमत कितनी है? सो मेरे पॉइंट से बेबी यू विल बी बेनिफिटेड बाई पेइंग 12.5%। और एक और सुन लीजिए, पहले 54 का बेनिफिट मिलता था आफ्टर इंडेक्सेशन, एम आई राइट? वही तो ना 54। 2 करोड़ की एसेट ली लैंड, सपोज कीजिए 2.5 करोड़ उसकी इंडेक्स कॉस्ट है, 5 करोड़ की बेची, तो आपको कितना इन्वेस्ट करना था? 2.5 करोड़। अब कितना करना पड़ेगा? 3 करोड़। अब इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गई। वाई? बिकॉज यू कुड टेक द इंडेक्सेशन पोर्शन एट होम। ले जा सकते थे कि नहीं? जो इंडेक्सेशन 2 का अगर 3 भी इंडेक्सेशन हुआ तो 1 करोड़ मेरे घर आ गया ना, और 2 करोड़ तो आ ही गया, 1 करोड़ और आ गया। सिर्फ मुझे 2 करोड़ इन्वेस्ट करना था 54। अब मुझे कितना करना पड़ेगा? 3 करोड़। तो लोग कहेंगे टैक्सी दे दो यार, इन्वेस्ट करके अगर मैंने सिर्फ ये करना है। और लेकिन 54 एफ को फायदा हो गया, 54 एफ को फायदा हो गया, क्योंकि 2 करोड़ का 5 करोड़ लगाना था, और 5 करोड़ होता था कैपिटल गेन 2 करोड़ था, 2/5 मिलता था। अब क्या मिलेगा? 3/5 मिलेगा। आपने नोटिस किया? मैं बता रहा हूं दोबारा। कॉस्ट 2 करोड़, इंडेक्स कॉस्ट 3 करोड़, मार्केट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 5 करोड़। अगर मैं 10 करोड़ वाली बात नहीं कर रहा, 10 में तो बड़ा मुश्किल है, मार्केट वैल्यू 5, तो क्या मिलता था? कैपिटल गेन 3 इंटू 5/10, यही मिलता था ना। 2 इंटू 5/10 इज हाउ मच? 40%, यही था जी। लेकिन अब क्या होगा? 3 इंटू 5/10, 60%। सो 54 एफ वालों को फायदा हुआ, क्योंकि वो विदाउट इंडेक्सेशन है, तो वो घर तक कुछ ले जा नहीं सकते थे। 54 एफ में घर तो ले जा नहीं सकते थे, बिकॉज इट हैज टू बी केप्ट देयर, और वो उस पूरे का पूरा नेट कंसीडरेशन प्राइस इन्वेस्ट करना पड़े था। अब नेट कंसीडरेशन प्राइस इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन क्योंकि कैपिटल गेन ज्यादा होगा बिकॉज विदाउट इंडेक्सेशन, तो ऑब्वियसली परसेंटेज विल बी मोर अंडर 54 एफ, बट एज कंपेयर टू 54 उल्टा है। समझ में आ गया सर? I think I have been able to give you the any question इसमें हो तो पूछ ले, तो मैं आगे चल रहा हूं। So मेरा पॉइंट ये है, it had to happen, but very good thing that for all other capital asset long term capital gain is 12.5%। लेकिन रुक जाइए, जो अनलिस्टेड डिबेंचर्स है और अनलिस्टेड बॉन्ड्स है वो यहां नहीं आएंगे। उसको इंक्लूड कर दिया सेक्शन 55AA में, सेइंग दैट नॉर्मल प्रोविजंस विल अप्लाई, और वो ना उसको शॉर्ट टर्म मानकर पूरा टैक्स लगा देंगे। कौन से वाले? अनलिस्टेड डिबेंचर्स, अनलिस्टेड बॉन्ड, बाकी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अनलिस्टेड डिबेंचर्स एंड बॉन्ड विल नाउ बी टैक्सेबल एज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। शॉर्ट टर्म का मतलब पूरा 30% मिलेगा, पूरा 30% एज ए नॉर्मल, राइट? अब इसको नॉर्मल इनकम क्यों कहते हो? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल इनकम नहीं होता है। इट इज देयर, क्योंकि लॉस होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस में, तो क्या बाकी इनकम से हो जाएगा लॉस? ये कहा जाता है, लेकिन ये नहीं है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन ओनली बी सेट अप फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इट कैन नॉट बी सेट अप फ्रॉम अदर इनकम। व्हाई डू यू से इट इज द नॉर्मल इनकम? उसको शॉर्ट टर्म ही कहेंगे, लेकिन टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट। टैक्सेबल नॉर्मल रेट 30 जरूरी थोड़ी है, 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो नॉर्मल रेट वो नहीं है। तो इट इज लाइक दैट। क्लियर हुआ सर? ये आपको मैंने सेक्शन कौन कौन से बताए? आई हैव गिवन यू सेक्शन 242A, 111A, 112, 112A, और इसके साथ साथ नॉन रेजिडेंट के सेक्शन है 115AB, 115AC, 115ACA, 115AD एंड 115AE। इसमें भी 10% टैक्स होता था, विच हैज बीन रेज्ड टू लॉन्ग टर्म का 12.5%। तो ये जितने भी सेक्शन नॉन रेजिडेंट के थे, उसमें से ACA नॉन रेजिडेंट का नहीं है, रेजिडेंट का है। But this rate, wherever the word 10% was given in a long-term capital gain under 115AB, AC, AD, ACA, AD, AE, and of course E, please note that 10% has been raised to 12.5%.
क्लियर हुआ सर? ये क्लियर है? आइए, मैं तो ये हर रोज कहता था और पिछले साल भी था कि न्यू रिजीम आ रही है और ओल्ड रिजीम बिल्कुल खत्म कर देंगे. आई हैड टोल्ड एवरीबडी दे हैव प्लान ऑफ अबॉलिशिंग द ओल्ड रिजीम. ऑलमोस्ट डिसाइडेड था, लेकिन मैं बीच में कहता था होगा ही नहीं कभी अबॉलिश. दे हैव नॉट गिवन एनी इंसेंटिव अंडर ओल्ड रिजीम. कोई बेनिफिट नहीं दिया ओल्ड रिजीम में, ना टैक्स स्लैब का, ना डिडक्शन, ना एटीसी, ना एटीडी. जो भी डिडक्शन है वही की वही रखी है. इवन जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है फॉर न्यू रिजीम हैज बीन रेज्ड टू 75,000. फॉर ओल्ड रिजीम इट रिमेन्स एट 50,000. पर्पस समझ आ गया? वो चाहते नहीं है. एक कारण है जिसके लिए रखा हुआ है. एक सेक्शन 1017 है जो ओल्ड रिजीम में अलाउड एग्जेम्प्ट है, नई रिजीम में एग्जेम्प्ट नहीं है. वो सेक्शन 1017 क्या है? डेली अलाउंस और कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस received by member of parliament or MLA is fully exempt. Have you understood the point? अगर वो ordinary regime में आए तो उनको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा. न्यू रिजीम, you are by default in the new regime. कोई फायदा नहीं है. मैंने तो देख लिया. मैं बहुत गया था लड़ने के लिए क्योंकि मुझे न्यू रिजीम नहीं पसंद आ रही थी. ओनली फॉर वन रीजन, 80QQB. 80QQB is for a author who gets the deduction of 100% or 3 lakh rupees, whichever is less. मैंने कहा 3 लाख पे 30% 90,000 बनता है, प्लस सरचार्ज पर एजुकेशन टैक्स. मुझे तो ओल्ड रिजीम ही जाना है. ठीक है, वो 1.5 लाख वगैरह वो तो मिल गया, मैंने जाना है. बाद में इस बार रिटर्न भर रहा था तो रियलाइज किया कि मेरा तो टैक्स 12 लाख ज्यादा बनता है ओल्ड रिजीम जाने में. तो आई शिफ्टेड टू न्यू रिजीम, क्योंकि सरचार्ज इन द केस ऑफ न्यू रिजीम इज मैक्सिमम 25%. Am I right or wrong? But in the case of others it is 37%. So सरचार्ज 25% है, वह 37 हो जाता है. और इस पर लोगों ने कमाई बहुत करी है शेयर से, तो क्या 5 करोड़ से ऊपर भी इनकम हो गई तो 37 जाएगा ओल्ड रिजीम, या तो वो जाएगा. सो माई पॉइंट इज प्लीज वर्क आउट. अब तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां डालिए अपनी रिटर्न में अंडर ओल्ड रिजीम क्या आएगा, अंडर न्यू रिजीम आपको बता देगा. जो कम होगा उसी में कर देना. सर उससे ये नहीं फायदा, और भी फायदा होता है. 234A, 234B, 234C का इंटरेस्ट भी तो कम हो जाता है. अगर मैं न्यू रिजीम में जाए तो पैसा अगर कम दिया तो और भी कम हो गया. सो यू हैव टू वर्क आउट एंड देन गो. बट बेस्ट आई एम टेलिंग यू, न्यू रिजीम इज मच बेटर देन द ओल्ड रिजीम. क्योंकि क्यों कर रहे थे, मैंने उनको बताया था. कारण ये था कि यहां पर तो कुछ लोग ऐसे हैं जो 80C में कभी जमा कराए नहीं और डिडक्शन ले लेते हैं. 80D की डिडक्शन ले लेते हैं, 80G की भी लेते थे. वो कहते थे 98% तो स्क्रूटनी में आते ही नहीं है, तो 2% स्क्रूटनी में आएंगे. ले लो क्लेम, डिडक्शन ले लो. बिकॉज यू डोंट हैव टू सबमिट एनी पेपर, यू डोंट हैव टू सबमिट एनी डॉक्यूमेंट, एंड दे वर क्लेमिंग डिडक्शन. एक तो ये कारण था. और एक कारण उन्होंने मुझे बताया, वो जो मैं कई बार बता चुका हूं आपको. पहला कारण यह था कि 70% HRA claim of the employees are bogus. 70%. आप सब रिटर्न भरते हैं, सब पता है आपको कि they are bogus claim. Somebody is paying to the father, somebody paying to mother, somebody paying to the brother, or sometimes even paying to the wife. वो कहता घुसने नहीं देती, कहती पहले रेंट दो मेरे घर का. सर लॉ है, 2 जजमेंट है हमारे फेवर में. There are 2 judgments of the tribunal which are in our favor that you can pay rent to your wife also. कहते एक तो ये काम है. तो दूसरा कारण क्या है? कहते सैलरी वाले दान बहुत देते हैं. सिर्फ सैलरी वाले ही दान देते हैं और तो कोई देता ही नहीं. अब आपको पता है क्या है, मेरे को कुछ ना है ना, मैं उसको रिपीट कर दूं. मैंने उनको उस दिन बताया था, सर आपके सामने बोल रहा हूं. मैं वही था. मैंने कहा कबीरदास लिख के चले गए, चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी ना घटे और नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए भक्त कबीर. कहां घटा? जितना दिया उतना ले लिया, और साथ में डिडक्शन भी मिल गई 80G में. ये हो रहा था सर, ये हो रहा था सर. चोपड़ा साहब, लोग दान बहुत देते थे. आपने कभी दान दिया? नहीं दिया. 80G लिया ही नहीं. वही सैलरी वाले देते हैं दान. तो इसलिए उनके दिमाग में तो खत्म करने का था, लेकिन ऑलमोस्ट खत्म ही है. बिकॉज यू हैव बीन गिवन बेनिफिट ऑफ टैक्स ऑल्सो अंडर 115 BAC IA में 10,000 रुपए का फायदा हुआ है, क्योंकि स्लैब बदल दिया. पहला स्लैब 3 का नील है, दूसरा 3 to 6 होता था, वो 3 to 7 कर दिया 5%. तो वो 1 लाख में 5% लगा जो 10 लगता था. वो 7 वाला 6 और 7 के बीच में 5 लगेगा जो 10 लग रहा था.
तो 5,000 वहां मिला। उसका अगला स्लैब है 7 to 10, वो पुराना था 6 to 9, सो 9 से ऊपर जो 1 लाख बढ़ा उसमें भी 5,000 का फर्क पड़ा, 10,000 रुपए का फर्क पड़ गया, बाकी कोई फर्क नहीं। और सेकेंडली स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी फर्क पड़ा, मुझे भी मिला 17,500 मल्टी प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन सेस, इतना बेनिफिट तो सबको मिलेगा ही मिलेगा अगर वो सैलरी की कोई इनकम भी आती है, नहीं आती तो 10,000 तो सबको मिलना ही मिलना है, प्लस सरचार्ज अंडर सेक्शन 115 BAC IA, दैट बेनिफिट हैज नॉट बीन गिवन टू ओल्ड रिजीम एट ऑल। ओल्ड रिजीम को कुछ दिए ही नहीं उन्होंने। सो ओल्ड रिजीम तो आप भूल जाना। और वैसे भी 80G भी लोग बड़ा शोर मचाते हैं, तो किस लिए 80G चाहिए आपको? आपने कल सुन लिया 58% कंपनीज हैव गॉन फॉर न्यू रिजीम, उनको क्या 80G ले चाहिए? है ही नहीं। जब न्यू रिजीम में 80G अलाउड ही नहीं है, और 58% का भी कारण क्या है, जो 42% है वो वाली है जिनका मैट क्रेडिट पड़ा हुआ है। जो मैट क्रेडिट है वो तो जाएगा ही जाएगा, बिकॉज ही हैज टू टेक द बेनिफिट ऑफ मैट क्रेडिट, अदरवाइज देयर इज अंडर न्यू रिजीम देयर इज नो मैट क्रेडिट। इंडिविजुअल एचयूए तो कहां जा रहे हैं? न्यू रिजीम में जा रहे हैं। सो क्वेश्चन इज 80G करना क्या है? मैं इसलिए इसको लाया कि सेक्शन 1023C है हमारे पास चैरिटेबल ट्रस्ट का, और एक 11, 12, 13 है। मुझे याद है 2 साल पहले मैं गया था तो इन्होंने उन दोनों को अलाइन कर दिया। 1023C और 11, 12, 13 में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक ही फर्क था। 11, 12, 13 में 9A दे सकते थे, 9A फॉर्म, 1023C में नहीं अलाउड था। तो मैंने ये कहा जब ये बराबर हो गया इसको मर्ज क्यों नहीं कर देते? लास्ट टाइम में गया, मर्ज कर दीजिए। अननेसेसरी सेक्शन 1023C हैज 23 प्रोवाइजो, 23 प्रोवाइजो है 1023C में, और हर प्रोवाइजो का नीचे एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन 1, एक्सप्लेनेशन 2, एक्सप्लेनेशन 3, और फिर भूल गए 2A, 2B, इतनी एक्सप्लेनेशन है। बोले कर क्या रहे? इसको मर्ज कर दीजिए। लास्ट टाइम कहते अगली बार करेंगे, चलो मान लिया, मर्ज नहीं किया है। मर्ज का मतलब समझिए नहीं कि वो सेक्शन हटाया नहीं है, नो 1023C में लिख दिया है कि 1 अक्टूबर 2024 के बाद आपको इस सेक्शन में अप्रूवल नहीं मिलेगी। किस सेक्शन में? 1023C में। जब अप्रूवल मिलेगी नहीं तो आप एग्जेम्प्ट नहीं होंगे। बट दिस इज व्हाट सेक्शन, क्योंकि कर क्यों नहीं सकते थे? सेक्शन 1023C में सब क्लॉज 3IA भी था, 3IAC था, 3IAD था, 3IAE था। वो AD और AE है वो ये 5 करोड़ वाले, और 3IA और AB है यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नॉट फॉर मेकिंग प्रॉफिट बट फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन विच आर होली और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। यही है ना सर? इनको रखना है। इनको तो माफ भी किया हुआ, इनको तो ऑडिट भी नहीं कराना होता, इनको तो कोई रिपोर्ट भी फाइल नहीं करनी होती, तो इसलिए उनको तो रखना था 5 करोड़ से नीचे वालों को। तो सेक्शन कैसे हटा दे? तो उन्होंने क्या किया, 1023C IB, VI और VI जिसके लिए अप्रूवल मांगते थे वो अप्रूवल 1 अक्टूबर 2024 के बाद अप्लाई ही नहीं कर सकते। और जो ऑलरेडी अप्रूवल ले चुके हैं, कराता ना री अप्रूवल, वो को 5 साल कंप्लीट होते ही यहां से हटके अपने आप 11, 12, 13 में जाना ही पड़ेगा। सो मीनिंग देयर बाय सेक्शन एग्जिस्ट बट नो मोर अप्रूवल on or after 1st of October 2024, and those who have applied before may be given approval, but whenever next time the renewal happens, they will not be covered under here, they will have to go under new, what you call, the second regime, that is 111, 12, 13. वैसे तो बहुत अच्छा है सर। वो न्यू नोबल एजुकेशन सोसाइटी के जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि हमारे सेक्शन 1023(6) में लिखा है income from a university or educational institution not for making profit but for imparting education, यही है, who is solely, who is engaged solely in providing the education, solely का मतलब सिर्फ एजुकेशन कर सकते हैं और कुछ करे नहीं सकते। अगर आपने एक ब्रांच को, बैंक के ब्रांच को वो वहां दे दिया ब्रांच, वो भी टैक्सेबल, पूरा टैक्सेबल होगा और आपकी एग्जेम्पशन भी कंसिडर कर सकते हैं। आपने कोई आउटसाइडर को कुछ दे दिया, कवर्ड था, सिर्फ स्टूडेंट के लिए जो करें वो अलाउड था, अदरवाइज बाकी किसी और आउटसाइडर के लिए कर ही नहीं सकते। अब वो न्यू नोबल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप रिन्यूअल के टाइम पे उधर शिफ्ट हो जाएंगे 11, 12, 13 में तो इंसिडेंटल टू द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव द ट्रस्ट आप 11, 4A में काम कर ही सकते, तो वहां पर भी एक इजी हो जाएगा, बेटर सेंस विल प्रिपेयर। एक और चीज,
एक तो मर्ज हो गया, मर्ज मतलब प्रैक्टिकली मर्ज नहीं हुआ, ये ऑटोमेटिकली मर्ज कर दिया कि यहां पर आप अप्लाई नहीं कर सकोगे अप्रूवल के लिए, आपको इधर जाना ही पड़ेगा, तो मर्ज ही तो हो गया, खत्म हो गया ना, उसकी वैल्यू खत्म है। पर वो रहेगी 5 करोड़ वाली नीचे वाली, वो नहीं चेंज हुआ, वो कोई मर्जिंग नहीं है, कुछ नहीं है, वो वही का वही है। मर्ज हुए आई, मर्ज नहीं हुए, आई वी 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 आई वी आई ए, इनके लिए आपको आगे से अप्रूवल नहीं मिलेगी, एंड यू डोंट गेट एग्जेम्पशन अंडर 1023C विदाउट हैविंग ए अप्रूवल, तो ऑटोमेटिकली आपको 11, 12, 13 में जाना पड़ेगा। क्लियर है सर? ये भी एक और चीज डालती है, ट्रस्ट आपस में मर्ज होते हैं मर्ज। हालांकि 150 TD में लिखा था कि आप मर्ज कर सकते हैं, लिखा है यू कैन मर्ज इट विद अदर प्रोवाइडेड दे आर रजिस्टर्ड, लेकिन कंडीशन कोई नहीं लिखी थी। अब 12A ने डाल दिया, आप दो ट्रस्ट आपस में मर्ज, पहली कंडीशन कि वो मर्ज करो सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स के, दूसरी कंडीशन, उसमें कंडीशन दे दी और कुछ नहीं किया, और उसने कहा कि 115 TD जो एक्रीडिटेड इनकम का था वो मर्जर के टाइम पे नहीं लगेगा, अदरवाइज वो लगना था, बिकॉज ऑफ 115 TD सबसेक्शन 3 क्लॉज 3 वो हटाकर उन्होंने कर दिया। सो प्लीज अब आप आराम से कंडीशन वो सेटिस्फाई करिए, कंडीशन भी प्रिस्क्राइब होनी है, थर्ड कंडीशन तो जो प्रिस्क्राइब हो गई तो आप मर्ज कर लीजिए, बट दोनों रजिस्टर्ड होने चाहिए, दोनों अप्रूव्ड होने चाहिए, और आपको बताया सिमिलर ऑब्जेक्ट के लिए होने चाहिए, और तब आप मर्जिंग कर सकते हैं। यू विल नॉट अट्रैक्ट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 115 TD जो टैक्स एक्रीडिटेड इनकम का होता है। सो ये भी उन्होंने सेक्शन 16 भी कर दिया। अब तक सेक्शन 28 में सेक्शन में कुछ नहीं किया, एक एक्सप्लेनेशन डालती है, थर्ड एक्सप्लेनेशन नंबर 3। हुआ क्या, चेन्नई प्रॉपर्टी की भी जजमेंट और भी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, दैट यू कैन बी इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट हाउस प्रॉपर्टी, एंड इफ यू आर इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट हाउस प्रॉपर्टी यू कैन बी टैक्स्ड अंडर द हेड प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, and once you are taxed under the head profit or gain for business or profession you are allowed all deductions which are there under 30 to 37, whereas in the case of house property you are allowed only one deduction, that is standard deduction 30% or interest on money borrowed in the 24B। तो अब उन्होंने क्लियर कर दिया, इट इज हेयर बाई क्लैरिफाइड, ये एक्सप्लेनेशन 3 लिखा है, इट इज हेयर बाई क्लैरिफाइड if there is a residential property or part of the residential property which is given on rent, the income from that property will not be taxable under the head profit or gain from business profession, it will be taxable under the head income from house property। बिल्कुल क्लियर कर दिया, सिर्फ रेजिडेंशियल के लिए किया, सिर्फ रेजिडेंशियल के लिए किया, कमर्शियल के लिए अभी भी लेट आउट करें तो हो सकता है बिजनेस चैप्टर में आ सकता है, प्रोवाइडेड वो चीजें हैं, अदरवाइज रेजिडेंशियल अब तो भूल जाओ, ये बिल्डर कई बार रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बनाकर किराए पे दिखाते हैं तो वो टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा। और एक ऑलरेडी है ही है स्टॉक इन ट्रेड, वो तो 23(5) ऑलरेडी है कि स्टॉक इन ट्रेड अगर आपके पास है और आपने उसको बेचा नहीं है, एंड इफ इट इज हेल्ड फॉर मोर देन 2 years देन इट इज ट्रीटेड एज डीम्ड टू बी लेट अंडर सेक्शन 23(5), और डीम्ड टू बी लेट तो कहा होता ही हाउस प्रॉपर्टी में है, बिजनेस के चैप्टर में तो डीम्ड टू बी लेट वाला वाइड है। क्लियर हो गया सर? ये भी, ये तो मैंने कर दिया। अब आया, हाँ जी, इस चीज का एनीवन मैंने वही तो बोला, बाकी मैं थोड़ी बिजनेस रीड करता था, उसका ही काम होता है, पर्सनल थोड़ी था, वही कंपनियां का फर्म है जो उसको बिजनेस ट्रीट करके बिल्डर का नाम लिया ना मैंने, they were treating it as a business income and claiming deductions. Now they can't treat the residential property or part of the residential or business income, they will have to treat the income from house property जिसमें सिर्फ 30% डिडक्शन मिलेगा और इंटरेस्ट और मनी बोरोड मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। 24 में क्लियर कर दिया, वहां ले जाओ, यहां नहीं होगा, ये क्लैरिफाई करा है उन्होंने, एक्सप्लेनेशन 3 इंसर्टेड अंडर सेक्शन 28। क्लियर है जी? पीजी चला रहे, अगर रेजिडेंशियल है और वो जीएसटी के प्रोविजन के अंदर कुछ फर्क आ जाता है, ये मैं पहले बताऊं। जीएसटी के प्रोविजन में तो आपको पता है रेजिडेंशियल वाले में नहीं लगता है मेरे हिसाब से जीएसटी, पीजी में लगता है, वो कमर्शियल मान लेते हैं उसको, वो कमर्शियल मानते हैं। देखिए, दो चीजों को हम मिक्स ना करें तो अच्छा है। जीएसटी मुझे आता नहीं है,
इनकम टैक्स में आता है तो बता देता हूँ, मुझे नहीं आता जीएसटी पूरा, गलत बोल दूँ कोई और चीज हो जाए तो मैं आई एम नॉट सेइंग ऑन दैट, आई नो दैट वो उसको वो कमर्शियल मानकर उसको कर रहे हैं. They are fighting on this ground. It is residential because it is let out to the वो जो गेस्ट हाउस बना रखे हैं या वो बच्चों को रहते हैं इसलिए. But that point is तो मैंने कहा ना मैं जानता नहीं सर. अब तो आ रही यहाँ पर है रेजिडेंशियल में, जो इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ मुझे. चलिए, अब एक था कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम. ये जो मैं बोलने जा रहा हूं सिर्फ न्यू रजीम के लिए. एम्प्लॉय का आजकल जो कंट्रीब्यूशन है न्यू पेंशन स्कीम में हो रहा है, गवर्नमेंट में भी हो रहा है. और गवर्नमेंट में अलाउड था एम्प्लॉयर कुड कंट्रीब्यूट 15%, लेकिन गवर्नमेंट को तो क्लेम करना ही नहीं है डिडक्शन, क्योंकि गवर्नमेंट के केस में तो इनकम टैक्स ही नहीं लगता तो क्या होता. लेकिन नॉन गवर्नमेंट के केस में employer could contribute only 10%. Deduction under 36(1)(b) IVA was allowed to the extent of 10% contribution by the employer to the national pension scheme of the employee. और 80 CCD सबसेक्शन 2 में लिखा था और 17 सेक्शन में लिखा था ये जो भी आएगा पहले इसकी ऐड कर लीजिए और बाद में उसको 80 CCD में वो 10% अलाउड होगा. अब सुन लीजिए क्या क्या. वेलकम. अब इनडायरेक्ट टैक्स आजकल पता है दुकान हल्की है तो इसलिए आराम से आए हैं. अगर दुकान तेज होती तो सबसे पहले यही बैठे होते. मैं बता रहा हूँ सर, इनकी दुकान तो 4 GST काउंसिल लगती है, 4 बार लगती है. हमारी तो दुकान एक ही बार लगनी है साल में. ये भी तो बात है ना सर, आई एम राइट और रॉन्ग? GST काउंसिल तो 4 हो जाती है साल में, तो 4 बार आपकी अमेंडमेंट आती है. हमारी तो अमेंडमेंट सिर्फ एक ही बार आती है. थोड़ी देर तो हमें चलने दो सर. चलिए, पर वो हल्के की चोट बड़ी भारी है. कमिंग बैक सर. सो 36(1)(4) में नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए नाउ एम्प्लॉयर कैन कंट्रीब्यूट 14% लाइक नॉन गवर्नमेंट में, और वो एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 36(1)(b)(a). 14 10 के बदले 14 अलाउ कर दिया. एम्प्लॉय का 14% पहले उसकी टोटल इनकम में ऐड हो जाएगा, फिर 80 CCD में वो 14% लेस हो जाएगा. तो ये एक एडवांटेज उन्होंने दे दी जो न्यू पेंशन स्कीम में है. बट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट के केस में तो पहले ही 14% था, नाउ इट इज 14% फॉर ऑल वेदर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट. ये एक एडवांटेज दिया है. बड़े देर सोचते रहे और प्रॉमिस भी किया था, लेकिन वो प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ. 43B एज का कहा था शायद 1 साल के लिए डेफर कर दें, लेकिन कोई डेफर तो हुआ नहीं. 43B एज रिमेन्स देयर. सो मैं सोच रहा था कि उन्होंने प्रॉमिस किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट वी विल डेफर इट फॉर 1 ईयर, बट इट हैज नॉट बीन डेफर्ड. पर ये मोदी की गारंटी नहीं थी, किसी और की थी, इसलिए हो सकता है. चलिए, तो मैंने कुछ बोला थोड़ी, आप जो मर्जी बोलिए. वो भी हमारे फोरम पे आके बोल के आए हैं. वो भी हमारे फोरम पे आके गारंटी दी. बोल के गए थे ना. बोल के गए. लुधियाना में बोल के आए हैं. मैं क्या बोलूं, कर्नाटक में भी बोल रहे. नहीं किया. अब एक और नई चीज आई है, आजकल क्रूज शिप बहुत होते हैं, क्रूज पे जाते हैं अब्रॉड, तो कहते हैं अब्रॉड जाते हैं, इंडिया में भी तो क्रूज शिप करा दो. तो क्रूज शिप नॉन रेजिडेंट इंडिया में चलाएगा, तो प्रेजेंटिव इनकम डाल दी 44BBC में. दे विल हैव टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ 20%. प्रेजेंटिव इनकम जैसे 44AD है, 80 है, यही है, और 44B ऑलरेडी प्रेजेंटिव है, 44BB ऑलरेडी प्रेजेंटेड है, और 44BBC डाल दिया. क्रूज शिप वो जो नॉन रेजिडेंट यहाँ पर चलाएंगे, आप वो वाले जो आप वहाँ जाकर जाते थे घूमने, अब यहाँ भी घूमे करिए, और उसके लिए उनको टैक्स 20% देना पड़ेगा. साथ में सेक्शन 10(12) में डाला कि वो दोनों अगर है रॉयल्टी मिली, उसको रिलीज रेंटल मिला है, अगर वो सेम कंपनियां हैं तो उसको माफ कर दिया. ये 44BC आया, ठीक है सर. एक बड़ा चेंज आया 47 क्लॉज 3I. अभी तक था what is not regarded as transfer of any capital asset under a gift or a will or transfer to irrevocable trust. ये ट्रांसफर नहीं माना जाता, इसमें कोई टैक्स नहीं लगता. 2 जजमेंट आ गई, एक जय ट्रस्ट के कि यस यू कैन, ट्रस्ट कैन ऑल्सो गिव गिफ्ट, और एक जजमेंट आ गई कंपनी के लिए कि कंपनी कैन ऑल्सो मेक ए गिफ्ट टू द अदर कंपनी. तो ये कह रहे ये क्या हो रहा है,
इसलिए 4730 में लिख दिया वेयर देयर इज अ ट्रांसफर बाय एन इंडिविजुअल और HUF अंडर ए गिफ्ट और अंडर ए विल और टू ए इरिवोकेबल ट्रस्ट, तभी वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को गिफ्ट देती है तो वो ट्रांसफर माना जाएगा, वो माना जाएगा। सिर्फ उनको छोड़ा है, बाकी को नहीं छोड़ा है। ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, सेक्शन 47 क्लॉज 3I में वो चेंज कर दिया, वो देख लेना। ये आगे आते हैं 56 57 मैंने 56 में वो एंजल 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 कर रहे हैं, मैं तो समझ नहीं आता। एंजल के साथ बाकी रावण भी निकल गया। हम तो पहले सुआ करते थे 10 रुपए की शेयर 290 रुपए प्रीमियम, कलकत्ता से शुरू हुआ था, याद है? 10 नई कंपनी का शेयर 10 रुपए प्रीमियम 990 रुपए करा था ना रवि जी, 5000 रुपए भी प्रीमियम में। और उसके लिए ये सेक्शन 5627B लाए गए था कि दैट इफ यू आर ए कंपनी इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड एंड इफ यू इशू शेयर and if the shares are issued at more than the fair market value, the difference between the issue price and the fair market value will be taxable under the income from other sources in the hands of the company. कंपनी के हाथ में टैक्स लगता था। अगर शेयर प्रीमियम से ज्यादा शेयर प्रीमियम वो ज्यादा ले लो तो फेयर मार्केट वैल्यू तक लो तो अलाउड है। 10 का अगर फेयर मार्केट वैल्यू 18 है, 18 रुपए ले लीजिए, कोई नहीं। 20 लेंगे, 25 लेंगे तो बाकी डिफरेंस में टैक्स कंपनी देगी। नीचे लिखा था वेंचर कैपिटल वेंचर अंडरटेकिंग को नहीं लगेगा, इवन उनको भी नहीं लगेगा स्टार्टअप को, लेकिन लेवल U2 में उनको करना पड़ता था। और लेकिन स्टार्टअप सारे रजिस्टर्ड नहीं होते, सारे उनका कंडीशंस है, दे शुड सेटिस्फाई द कंडीशन लेट डाउन। और 5627B हटा दिया, फिर दुकान चल पड़ी कि आप जितना मर्जी प्रीमियम चार्ज करिए, सिर्फ 68 में ध्यान रखिए कि आपको जब कोई शेयर कैपिटल लेना है, शेयर प्रीमियम लेना है, एप्लीकेशन मनी लेना है, तो सोर्स का सोर्स बताना पड़ेगा। सोर्स का सोर्स दैट इज देयर 68 में है। सोर्स वो तो पहले आ चुका है, वो नई चीज थोड़ी है। सोर्स का सोर्स भी बताना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज यू कैन इशू शेयर नाउ वर्थ 10 रुपीज फॉर एनी अमाउंट, लेकिन ट्रांसफर नहीं कर सकते। ट्रांसफर में 50 CA अभी भी है, ट्रांसफर हैज टू बी डन एट द फेयर मार्केट वैल्यू, प्लीज नोट। लेकिन 56(2)10 इश्यू ऑफ शेयर का था, नाउ यू कैन इश्यू द शेयर एट एनी अमाउंट, नो प्रॉब्लम, फेस वैल्यू और मोर देन एनी अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू। प्रीमियम जितना मर्जी लो, पर प्ली केयरफुल अंडर सेक्शन 68 यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सोर्स ऑफ सोर्स ये हो गया सर। चलिए ये हमारा यहां भी हो गया। आगे जब हम जा रहे हैं ना, तो उसमें चीजें जो है ना, आपके जो बता रहे थे संजय जी चले गए, वो जो है ना, ठीक कहा। 95 में सेक्शन 113 भी इंट्रोड्यूस किया गया था और साथ में ब्लॉक का असेसमेंट भी किया गया था। ये 95 में कर रहे थे ब्लॉक, लेकिन वहां अनडिस्क्लोज्ड इनकम का असेसमेंट होता था। ओनली अनडिस्क्लोज्ड इनकम अंडर ब्लॉक असेसमेंट, रेस्ट इनकम अंडर नॉर्मल प्रोविजन। उसको चेंज कर ये 153A, 153B, 153C ले लाए, टेस्टेड हुआ, लेकिन कई प्रॉब्लम आई, तो फिर ये नया मर्ज कर दिया 21 में अंडर सेक्शन 148, 147, 148। रियलाइज किया, रवि जी भी बात कर रहे थे अभी मेरे से, कि तब क्या होता था, 6 साल का केस है या 3 साल का है या 10 साल का जो भी केस है, वो ईच ईयर का केस का नोटिस इशू करते थे। ब्लॉक का तो नहीं, 1 ईयर का करा, और वो उसका करते हैं जो टाइम बार्ड होने जा रहा है, बाकियों का पड़ा रहता था। तो वो सारा पर्पज 10-10 साल लग जाते थे उसको असेसमेंट करने के लिए। सो फॉर दैट रीजन ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, चैप्टर 14 भी ऑलरेडी है, चैप्टर 14 भी ऑलरेडी है, उसको सब्स्टिट्यूट करके नया चैप्टर 14B डाला है। वो पहले से है 158B, 115BA, 115BB, 115BC, 115BD, 150BI तक डाल दिया है। ये नया चैप्टर डाल दिया, कह दिया है आपको टैक्स देना पड़ेगा ऑन व्हाट, टोटल इनकम। अब अनडिस्क्लोज इनकम नहीं, टोटल इनकम जो कैलकुलेट करेंगे उसमें 60% टैक्स देना। ये 60% लिखा कहां है? यहां नहीं है, 113 में लिखा है। वहां लिखा था अनडिस्क्लोज इनकम टू बी टैक्स्ड एट 60%, वहां लिख दिया टोटल इनकम शुड बी टैक्स्ड एट 30%। 6 साल का 30% ब्लॉक असेसमेंट होगी, टोटल इनकम, उसमें अनडिस्क्लोज इनकम भी आएगी।
प्लीज नोट टोटल इनकम। आप टोटल इनकम डिफाइन कर दिया, जो रिटर्न ऑलरेडी आपने डाल रखी है और जिसकी असेसमेंट हो गई, तो वो टोटल इनकम इधर ही बाकी आएगी। टोटल इनकम निकाल कर उसका बेनिफिट ले लीजिए। पेनल्टी 60% टैक्स है। ये तो हम शोर बचा बचा के कराया। 115 BEE में बेड़ा गर्क कर दिया था, क्योंकि अगर 150 BEE में देखिए तो इफ देयर इज अ सर्च केस, यू हैड टू पे टैक्स at the rate of 60% plus surcharge plus education tax 78% plus penalty 30% if you declare at the time of search or 60% if you don't declare it। तब कितना टैक्स लगता था सर, इंक्लूडिंग पेनल्टी? 108 मिनिमम एंड 138। गए थे ईद मनाने, रोजे गले पड़ गए। कहां से लाएंगे 138%? उसके लिए कम कर दिया, 60 कर दिया। अभी तक तो बोला है अगर 113 16 से पढ़ो तो लिखा सरचार्ज इफ अप्लाइड लगेगा, लेकिन अभी इन्होंने प्रॉमिस किया है कि सरचार्ज अभी नहीं लगेगा। ये भी प्रॉमिस किया है 234A 234B 234C का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ये भी प्रॉमिस किया है। ये किया है, लेकिन साथ में ये कहा है कि देखिए पेनल्टी लग सकती है अगर आपने नहीं डिक्लेयर किया अपनी रिटर्न में। कितनी? 50% ऑफ 60%। सो 60 + 30 90 मैक्सिमम होगा, 60 + 30। लेकिन उसके आगे लिखा है कि पेनल्टी नहीं लगेगी इफ यू हैव सबमिटेड द इनकम इन द रिटर्न, और उसके आपने पैसा जमा करा दिया, सोर्स बता दिया, तो हम पेनल्टी नहीं लगाएंगे। हाँ, उसके बाद अगर डिफरेंस आया तो पेनल्टी लगेगी। और साथ में एक और बोला है कि आपको अगर आपको बोला गया कि इंटरेस्ट रिटर्न भरी है, अगर आप रिटर्न नहीं भरते या लेट भरते हैं तो यू विल बी लायबल फॉर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1.5%। ये भी बोला है, इंटरेस्ट लगेगा पर मंथ फॉर डिले इन फाइलिंग द रिटर्न इन रिस्पॉन्स टू ए नोटिस गिवन अंडर 158 BAC। तो ये और 115 BCD डाला है, BD 158 BD, इनकम ऑफ अदर पर्सन। जो हम कहते हैं ना, ये मेरे यहाँ पाया गया डॉक्यूमेंट, मनी, बुलियन, ज्वेलरी विच बिलोंग्स टू अदर पर्सन और परटेन्स टू अनदर पर्सन, तो हम 153C करते थे। अब वो 115 BD में आ गया, बट यू विल बी इवन नोटिस अंडर 150C। और फिर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट का बोल दिया 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द सर्च इज एग्जीक्यूटेड। 12 महीने में कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन उस केस में जब हैंडओवर होगा तो 12 मंथ्स फ्रॉम देयर, मिनिमम 6 मंथ्स। ये सर्च के केसेस का है। बाकी तो बहुत कुछ संजय जी ने बता दिया, मैं सर्च करता नहीं हूँ। यही कर, मैं तो भगवान से कहता हूँ कि भैया टैक्स दो और जान छोड़ो। लेकिन ये बैठे हैं ना, एक संजय जी और एक रवि जी, उनका काम ही सर्च केस करना है। मैं क्या कर सकता हूँ, करे मैं ना। आई ऑलवेज वांट ग्रोथ फॉर द, आई से पे टैक्स एंड एंजॉय लाइफ। टैक्स दो, जिंदगी अपनी अच्छी बताओ, कोई फायदा नहीं है। आप उनके पास मोर इंफॉर्मेशन देन यू हैव अबाउट योरसेल्फ। उनके पास इतनी इंफॉर्मेशन है, आई कांट टेल यू कि क्या क्या इंफॉर्मेशन वो लेके आ रहे हैं। तो क्यों एक अपने आप को फंसा रहे हो? टैक्स दो और जान छुड़ाओ, यही सबसे बढ़िया है। और आपको भी कहिए, और है भी कितना टैक्स? ना वेल्थ टैक्स है, ना गिफ्ट टैक्स है, ना राहुल गांधी टैक्स है, मतलब इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है अभी तो। वो आया तो आ जाएगा ना। नो इनहेरिटेंस टैक्स एट ऑल। सो व्हाट इज द टैक्स? ओनली इनकम टैक्स, एंड स्टिल वी डोंट वांट टू गिव, एंड यू गेट ऑल बेनिफिट वॉट एवर इज देयर। सो टैक्स तो देना पड़ेगा सर। ये कहते हैं तो जवाब डिपार्टमेंट के फेवर में हो गए। मैं डिपार्टमेंट के फेवर में नहीं हुआ, मैं आपके फेवर में हूं कि अब उनके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है। पहले इंफॉर्मेशन नहीं थी। अब देखिए क्या करा है। अभी तो सीधे बताता हूं, मैं पहले आगे ले जाता हूं। 206C1F मोटर कार में TCS कलेक्ट होता है इफ इट इज मोर देन 10 लाख। अब कोई भी गुड्स खरीदेंगे जिनको स्पेसिफाइड करने लगे, और वो 10 लाख के होगा, उसका भी TCS कलेक्ट करना पड़ेगा। खरीदो डायमंड का हार 10 लाख से ऊपर, लाइए इस पे करिए। खरीदिए LV में जाकर पर्स 12 लाख का, तो लाइए TCS कलेक्ट करिए। अब ये होने जा रहा है 10 लाख के ऊपर कोई भी आइटम खरीदी, गुड्स टू बी स्पेसिफाइड, और गुड्स टू बी स्पेसिफाइड, दे विल कलेक्ट TCS एट द रेट ऑफ 1%। ये ध्यान रखिए, 1% TCS है। जो TCS का मतलब सब इंफॉर्मेशन आ गई, सब इंफॉर्मेशन आ गई उनके पास। सो बी केयरफुल, यू हैव टू। मैं कार साहब की वजह से नहीं कह रहा कि पे टैक्स एंड एंजॉय लाइफ। ये कभी कहे मैं डर गया, मैं नहीं डरता, लेकिन मैं जरूर कहता हूं कि वक्त बदल चुका है, डिजिटलाइजेशन इकोनॉमी है, एवरीवन नोज व्हाट इज हैपनिंग। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कमिंग आउट एंड नॉट पेइंग टैक्स? आगे देखिए ना, TDS भी तो कम कर दिया ना।
115, 194 DA, 194 G, 194 H, 194 IB, सबका 5% का 2% कर दिया, सबका 2 कर दिया है। जो इंश्योरेंस कमीशन होती थी 5% TDS कटता था, वो 2 हो गया। लॉटरी कमीशन होती थी जिसमें 5% करते था, वो 2 हो गया। जो कमीशन एंड ब्रोकरेज होती थी जो 5% करता था, वो भी 2 हो गया। जो 194 IB होता था, 50,000 से ऊपर रेंट दिया और आप इंडिविजुअल HUF हैं जो 194 I में कवर्ड नहीं थे, तो उसका भी 2 कर दिया है। 194 M का भी बदल दिया है। 194 O का जो ई कॉमर्स ऑपरेटर थे 1% का 0.1% कर दिया। Purpose is they want information and they have brought down the TDS rate from 5% to 2% in most of the cases. तो ये ध्यान रखिए कि काफी TDS का लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट बना है। आजकल बच्चों को बाहर भेजते हैं, TCS कलेक्ट होता है, या गाड़ी खरीदते हैं, सैलरी वाला आदमी है, TCS कलेक्ट होता है 10 से ऊपर खरीदी, तो TCS का क्रेडिट नहीं देता था एम्प्लॉयर। वो कह रहा था हम आपको इंफॉर्मेशन दें, TDS का तो क्रेडिट दे देंगे अगर यू इन्फॉर्म करो अदर इनकम के बारे में, पर TCS का क्रेडिट अलाउड नहीं था वाइल कंप्यूटिंग द टैक्स अंडर 192। वो कह रहा था नहीं, TCS नहीं, ओनली TDS वाले। लेकिन अब लॉ बदल दिया, आप TCS की इंफॉर्मेशन दीजिए, वो भी आपकी टोटल लाइबिलिटी से कम होकर बाकी पे आप TDS कटेगा। बड़ा ये क्यों करा गया? मजबूरी है। 10 से ऊपर गाड़ी खरीदी, TCS है, वो कहां से? वो कहता वहीं से ले लो। या आपने बेचे को बाहर भेजा, 1 करोड़ रुपया लग गया, 70 जो भी लग गया, उसके ऊपर आपने 20% दिया, तो उसका बेनिफिट तो मिलता ही नहीं था। फिर रिटर्न भरो और फिर इतने सालों का बने, कम से कम अपने एम्प्लॉयर को बोलो ये मेरा TCS है, इसका क्रेडिट कर। सो दिस हैज बीन डन अंडर 192। नहीं, अदर देन सैलरी में तो पहले ही अलाउड था सर। सैलरी में 192 की वजह से था, बाकी तो सारा TCS क्रेडिट मिलता ही है। आपको क्या मिलता नहीं है क्रेडिट सर? आपने बाद में मिलता है, तो पहले तो एडवांस टैक्स में आप एडजस्ट तो कर लिया उसको। मैं तो एडवांस टैक्स देता नहीं हूं। अगर मैंने कोई बाहर भेजना है पैसा, तो उतना पैसा मैं एडवांस टैक्स कम कर देता हूं। तो कहां नहीं मिलता है? मिलता है वो तो। सर यू एडवांस टैक्स कम करिए ना, यू आर गोइंग टू गेट द क्रेडिट ऑफ TDS एंड TCS एंड देन मींस यू कैलकुलेट योर टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ आफ्टर दैट डिडक्शन। ऐसा नहीं है सर, सिर्फ इनको प्रॉब्लम थी। सैलरी वाले आदमी थे बेचारे, वैसे दान बहुत देते थे, पर जो भी है उनको प्रॉब्लम आती थी। 194 TCS का क्रेडिट नहीं मिलता था। अब वो अपने एम्प्लॉयर को अगर दे देंगे तो एम्प्लॉयर उसका बेनिफिट TCS का भी दे देगा अलॉन्ग विद TDS एंड दे विल डिडक्ट द टैक्स आफ्टर गिविंग दैट बेनिफिट। इट इज अ गुड आइडिया, इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स वेरी गुड। दे आर नॉट बीइंग गोइंग टू सफर और पेज आउट का ब्लॉक नहीं होगा जितना होगा। क्लियर है सर? ये मैंने TDS के बारे में बताया। एक और पॉइंट था, मैं भूल गया कहना, वो 112A में ही था कि आजकल ट्रस्टों में बहुत गलतियां हो रही हैं। कोई रिटर्न लेट भर रहा है, कोई अप्लाई नहीं करा रजिस्ट्रेशन वगैरह, तो अब उन्होंने एक प्रोविजन दे दिया कंडोनेशन ऑफ डिले परमानेंटली। 119(2)B में जाइए, आप कंडोनेशन ऑफ डिले करा लीजिए। ये हो सकता है। अगर कंडोनेशन ऑफ डिले हो गया तो आपको वो 139(9)A डाल दिया है कि वो कंडोनेशन ऑफ डिले में ये मानी जाएगी रिटर्न अंडर 139 है। ये डाला, प्लीज रीड अंडर 12A प्रोवाइजो डाला और इधर 139A में उसको कंप्लीट कर दिया कि वो माना जाएगा, आप उसको ले सकते हैं। ये अनदर बेनिफिट जो आपको दिया गया। अब ये 21 में तो आया था रीअसेसमेंट, अभी तक तो सेटल भी नहीं हुआ लॉ, फिर बदल दिया। लेकिन अब सर्च को तो अलग कर दिया, लेकिन इसके लिए पहले 3 मंथ्स और 6 ईयर था, लेकिन 3 मंथ्स नहीं था, 3 मंथ्स भी था। 3 मंथ्स होता था जो 15 मार्च के बाद अगर हो तो उस केस में उन्होंने कहा था कि 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए। अब उन्होंने सीधा यही कर दिया 148 में, 149 में, 3 years and 3 months दे कैन ओपन रीअसेसमेंट कर सकते हैं, एंड 6 years and 3 months if it is more than 50 lakh and it presents some income, some revenue, some entry, वो उन्होंने कर दिया है। सो उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आया। 148A जो था ना, उसमें होता था क्लॉज A, B, C, D। 148A में यही था ना, पहले वो इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, फिर आपको शो कॉज देगा, फिर शो कॉज का आप जवाब देंगे, फिर उसके बाद ऑर्डर पास करेगा 148A D में। अब ये 148 के बाद A, B, C, D तंग कर रहा था,
उन्होंने 148A सब सेक्शन 1 कर दिया, ABC नहीं किया, कर दिया, अब 1 में मर्ज कर दिया, अब कोई कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी नहीं करेगा। इंफॉर्मेशन उसके पास है विच सजेस्ट द इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट। The information will be provided to him by the risk management strategy. He has a information which suggests कि इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट, वो आपको नोट है कि नहीं। अगर है तो फिर आपको वो आपका जवाब लेकर आपको वो ऑर्डर पास कर देगा। अगर वो मान जाता है कि नहीं देयर इज नथिंग लाइक दैट, तो ठीक है, वो ड्रॉप कर देगा। सो ये अच्छा पॉइंट है, लेकिन पॉइंट ये है अब कंडक्टिंग ऑफ इंक्वायरी नहीं, अब तो स्ट्रेट अवे information which suggests he has an information in possession which suggests that income has escaped assessment, he will issue a notice to you to appear and communication करो तो to appear before him, और आपकी opportunity of being heard के बाद he will take a decision। पहले कहेगा शो काज में दे रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए, उसके बाद वो ऑर्डर पास कर देगा, and then you will go to 148 for issuing of notice, and then वो सेम है बाकी प्रोसीजर को, सिर्फ सेक्शन बदले, चीज बेसिकली यही है जो मैंने आप, और वो सब हटा दिए गए। सर्च के केस में कोई इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, ये वो तो पहले उधर आ गए, तो इधर की अब जरूरत नहीं है। सो जो बेसिकली था इनकम विच सजेस्ट दैट इट हैज एस्केप्ड असेसमेंट, उसमें सर्च वर्च को डालने की जरूरत नहीं, वो तो डीम्ड केस था, वो तो उधर चले गए, इसलिए वहां पर ये चेंज आई है जो मैंने आपको बोला। अब एक और प्रॉब्लम आती थी 206C में 1% इंटरेस्ट था अगर आप TCS काट के जमा ना करें। TDS में TDS काट के अगर जमा नहीं कराए तो 1.5% था। Am I right or wrong? You have not deducted 1%. If you have deducted and not deposited 1.5% per month, TCS में अभी भी 1% था, उसको इन्होंने 1.5% लेवल प्लेइंग फील्ड कर दिया। इवन इन TCS if you don't collect, you collect and after collection you don't deposit। सबसे बड़ा मुझे जो अच्छा लगा वो 276B है, डीक्रिमिनलाइजेशन, वो जो प्रोसिक्यूशन हुआ करता था TDS लेट जमा कराने का। गलती तो हमारी थी, कोई जमाना था 12 महीने तक अलाउड होता था कि अगर 12 महीने में जमा करा दें, तो लोगों ने क्या किया 12 महीने के बाद पहले ही जमा कराते ही नहीं थे, वो कहते इंटरेस्ट ही पड़ेगा ना, बैंक से लेने से अच्छा है इनका पैसा यूज कर लो, तो ये करा कर। तब इन्होंने डेट कर दिया, इवन 1 डे डिले प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर दिया, इवन 1 डे डिले 10 डेज लेट प्रोसिक्यूशन हो रहा है, और कंपाउंडिंग करवाइए, और कंपाउंडिंग में प्रिंसिपल अमाउंट को भी लीजिए, तो ये वाले पॉइंट आ रहे थे। अब क्या किया है, अगर जो क्वार्टर दिसंबर की 1 महीने में जाती है और मार्च की जून 2 महीने में जाती है, अगर उस तारीख तक आप TDS जमा करा देंगे तो इन दैट केस प्रोसिक्यूशन विल नॉट बी लास्ट, अदरवाइज तो मिनिमम 3 मंथ्स प्रोसिक्यूशन क्या था जेल, और 7 साल की कैद थी प्लस फाइन। चलो 3 महीने भी, अगर पैसा आपने गलती से नहीं काटा, 1 डे डिले, 2 डेज डिले, 1 डे मंथ डिले, आप जो क्वार्टर खत्म होता है उसके टाइम, उसकी रिटर्न भरने का जो टाइम है 30 डेज, उतने देर जमा करा देंगे तो हम आपको प्रोसिक्यूशन नहीं करेंगे। इट इज़ ए गुड प्रपोजल। चलो 3 महीने दिए ना, 2 महीने भी दिए, 1 महीना भी दिया, सारे नहीं है 3 महीने, मैक्सिमम 3 मिनिमम 1, वो तो दिया आपको। सो यू कैन हैव ए बेनिफिट ऑफ that you will not be prosecuted, means a client will not be prosecuted and you will not have to go for compounding if the TDS has been deducted and deposited by that date. Clear sir? ये भी आ गया। अब और कौन कौन से प्रोविजन रहेगा मेरे को तो याद नहीं, 2-4 बताओ मेरे को। वो तो 12 सेक्शन डाल दिए, वो बिल्कुल वही वाला है जो पहले वाला था, री इंट्रोड्यूस कर दिया। विश्वास क्या था, विवाद से विश्वास, पर्पस वही है, पहले इनकम टैक्स में किया था, फिर GST में किया था, फिर इनकम टैक्स में दोबारा लाने जा रहे हैं। वो अमेंडमेंट है, 12 अमेंडमेंट है, वो उन्होंने डाल दिया। विवाद से विश्वास प्रोसीजरली वो सेम है जो हम करा करते थे, टैक्स एरियर, फिर उसमें इंटरेस्ट होता था, पेनल्टी होती थी, सब वो बिल्कुल वैसे ही है। आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, अब तो वैसे भी पढ़ना ही पड़ता है, बगैर पढ़े तो काम होता नहीं है। जब से फेसलेस हो गया पढ़ना ज़्यादा पड़ता है सर। हाँ आइए 40B बहुत सा बेड़ा गर्क किया है, ये ऐसे ही बोलते जा रहे हैं। 40B देखिए सर, ऐसा है कुछ भी तो नहीं किया 40B में। मैं ये सोच रहा था न्यू रिजीम आएगी पार्टनरशिप फर्म की भी, बाकी सबकी न्यू रिजीम आ चुकी है, कंपनी की आ चुकी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की आ चुकी है, इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन सबकी न्यू रिजीम है।
तो पार्टनरशिप की क्यों नहीं है भाई? उसको भी कर दीजिए, 30 का 25 कर दीजिए, करो तो सही कुछ. बिकॉज डोंट गिव देम डिडक्शन. देयर इज ओनली वन पार्टनरशिप इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स LLP वेयर देयर इज नो रिजीम. वो रिजीम नहीं है, वो वही है ओल्ड रिजीम 30%. लेकिन एक काम कर दिया 40B में, जो आप सैलरी देते थे, जो आप इंटरेस्ट देते थे एज पर पार्टनरशिप डीड अलाउड है, पता है इंटरेस्ट 12%, सैलरी आपको अलाउड है कि क्या है. उस केस में फर्स्ट 6 लाख, पहले 3 का 90% और 150 विच एवर मोर होता था, अब उसको फर्स्ट 6 लाख 90% और 3 लाख विच एवर मोर सैलरी अलाउड होगी और बाकी बैलेंस का 60% अलाउड होगा. ये तो है, लेकिन आपको सैलरी हर महीने लेनी पड़ेगी. नहीं तो किस तरह आप, वो अरुण जी बता रहे थे, हर महीने लोग ड्राइंग करते रहते हैं और सैलरी बाद में साल के अंत में डाल देते हैं. अब आपको 194T में TDS काटना है एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज. बार बार मैं कहता था, ये कल पार्टनरशिप फर्म और इंडिविजुअल तो एक ही बात, पार्टनर एक ही बात है. पहले 45(3) में बदला, 45(4) में बदला कि दोनों अलग अलग हैं, डिसोल्यूशन में भी. अब यहां भी कह दिया अलग अलग तो हैं, हम मानते हैं एम्प्लॉय नहीं है, इसलिए 192 नहीं डाल रहे, 194T में आपको TDS काटना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 10. सो एवरी फर्म और LLP who make payment of salary to the partner or interest to the partner will have to deduct the TDS at the rate of 10% under 194T. 20,000 से ज्यादा नहीं देते तो वो कहता करना ही क्या 20,000 वाली बात की, वो को TDS काटना पड़ेगा. एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दी, वर्क की डेफिनेशन है. उस वर्क की डेफिनेशन में एक एक्सप्रेशन है कि भाई अगर आप किसी का माल बना रहे हो अकॉर्डिंग टू हिज स्पेसिफिकेशन वो दैट, और वो वर्क नहीं होता. एक और डाल दी, अगर आपकी कोई ऐसी चीज है जो 194J1 में आती है, 194J1 में, वो 194C का TDS नहीं कट सकता. अब 194J में ही कटेगा. क्या कर देते, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज पे तो 2% है, लेकिन बाकी में तो 10% है, कंसल्टेंसी भी 10%, वो 194J में 194C में 1% या 2% काट देते. उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो भी TDS 194J में कटेगा, 1 है जो कवर्ड होते आइटम में, उसका 194J एप्लीकेबल होगा, 194C एप्लीकेबल नहीं होगा. ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया. ये क्या रखना. और कौन सा सर दो जाते, अपील तो बहुत होती, लोग जानकर 144 करा लेते थे कि भाई 144 करा लो, अपीयर ही ना हो, और फिर कमिश्नर अपील, तो हम कमिश्नर अपील के पास चले जाएंगे और कमिश्नर अपील असेसिंग ऑफिसर बन जाता है और वही असेसमेंट करेगा. बात समझ गया मैंने. तो अब क्या है, अगर 144 में गए हो और कमिश्नर अपील के पास गए उसके बाद, तो उस केस में ही में सेट असाइड द केस एंड गिव इट बैक टू द असेसिंग ऑफिसर. पहले तो ऐसा नहीं था, सेट असाइड कर ही नहीं सकता था. सेट असाइड ITAT करता था, को हाई कोर्ट करता था, सेट असाइड अपील, कमिश्नर अपील अलाउड नहीं था. नाउ कमिश्नर अपील कैन सेट असाइड दिस टाइप ऑफ केस व्हिच हैज बीन असेस्ड अंडर 140. और 253 में वो जो पेनल्टी लगी अंडर ब्लॉक असेसमेंट, उसकी भी अपील फाइल करने के लिए 253 में उस सेक्शन को कोट कर दिया, 115 FA. वो ही करा है और कुछ नहीं करा. और कोई है तो बता दो सर. अभी पहला लेक्चर दिया है तो कोई एक आध चीज भूल भी सकता हूं, कागज है नहीं. 55 डबल ए डाला वहां सेक्शन में, वही वाला है. 2018 से पहले आपको अलाउड था, आपने शेयर इशू किए अनलिस्टेड कंपनी IPO लाने के लिए, करते प्री IPO इशू, वो आपने शेयर इशू किए, वो शेयर ले लिए. लेकिन वो एक जो नोटिफिकेशन था उसमें कुछ डिफेक्टिव लोगों ने समझ लिया कि ये मार्केट वैल्यू आप 31 जनवरी 2018 की ले सकते, ये ले सकते. अब उन्होंने क्लियर कर दिया, रेट्रोस्पेक्टिव से कह दिया, यू आर नॉट अलाउड टू टेक फेयर मार्केट वैल्यू ऑन दैट 31st है, जो आपकी परचेज प्राइस है उस पर नहीं. लेकिन उस वक्त इशू ऑफ शेयर में याद रखिए 56(2)(10) लगता था, 56(2)(7)(B) लगता था. अब इशू ऑफ शेयर में 56(2)(7)(B) नहीं लगेगा, उस वक्त था. तो रीइशू में आप इशू जो शेयर इशू किए, आप मार्केट वैल्यू लेना चाहते हैं ना, बस यही तो फर्क है, और तो कोई फर्क नहीं है. वो आप तो कहते हैं मार्केट वैल्यू मिल जाए 31 जनवरी, क्योंकि मुझे पहले का इशू किया 10 साल पहले, 12 साल बाकियों को मिल रहा है. वो लिस्टेड कंपनी के शेयर को मिला था ना, क्योंकि हमने 1038 हटाया था.
आई रिमेंबर 1038 हटा था कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर, तो उसके लिए हमने बेनिफिट दे दिया कि पुराने वालों को ग्रैंड फादरिंग कर दो कि जो शेयर की वैल्यू 31 जनवरी 2018 की हो गई वो ले लो ताकि पुराना टैक्स ना देना पड़े। वो ग्रैंड फादरिंग की थी। दैट ग्रैंड फादरिंग वॉज नॉट फॉर दिस। और मैं तो पहले से कह रहा था, हमारी अपनी किसी ने किया था, वो कह रहे नहीं मुझे तो बोला गया है कि आप ये मार्केट वैल्यू ले सकते। याद है रवि जी, हम दोनों ही बैठे हुए थे, मैंने कहा मैं तो ख्याल से नहीं ले सकते, और वही हुआ, नहीं ले। वो लोग कहते आप ही ने कराया। हर आदमी मेरे को ही कह देते आपने कराया। अरे मैंने कुछ नहीं कराया सर, उनको भी पता है क्या क्या होता है। तो ये चीज भी हुई थी सर, फिर भी देख लूंगा मैं। अब आपके बहुत टेक्निकल बात है, यूनिट और वो है, लेट मी चेकअप एंड गेट बैक टू यू, कर लेंगे। अब आपके पास हो गया क्यों है, वो कोई रह गया सेक्शन? सर मैं भूल भी सकता हूँ, मैं इतने देर कल रात को तो आया, 3 बजे रात को सोया हूँ। वो कहते हैं आपका चेहरा थोड़ा नीचे गिरा हुआ है। मैं क्या करूँ, सोया कहाँ हूँ मैं? नो 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 नो, जैसे ये सर्च का है 1 जुलाई से है, कुछ 1 अक्टूबर से है, कुछ पहली पर 25-26 असेसमेंट के। जितने भी प्रोविजन टीडीएस के होते हैं वो एक डेट से होते हैं, वो 1 अक्टूबर से। वो 1 अक्टूबर प्रोसीजरल मैटर हमेशा बात का होता है। लेकिन ये दे दिया ना बेनिफिट कि जो कैपिटल गेन कमा चुके हो 23 जुलाई से पहले वाले, तो ये बेनिफिट दिया है सर। अदरवाइज तो असेसमेंट ईयर 25-26 तो एक ही है। लेकिन मुसीबत तो हमें पड़ गई किताब लिखने में कि 2 कैसे निकालेंगे, बिफोर 30 ये होगा, ये हाथ में वो होगा, वो है। लेकिन मैं पॉइंट ये है कि उन्होंने वो बेनिफिट आपको दे दिया है। 15% वाला भी दे दिया है। मैं तो ये सोच रहा हूँ, 2 दिन पहले मैं शेयर बेच रहा था, बेचे क्यों नहीं, 2.5% खर्चा होगा। सो माई पॉइंट इज, जो है वो वाला पॉइंट आपको बेनिफिट उन्होंने दे दिया 23 जुलाई से पहले वाला, वो वाला दे दिया। और किसी में जरूरत नहीं थी तो वो नहीं दिया है। और कोई पॉइंट है तो सर अब क्वेश्चन 5-4 मिनट लेना ले लीजिए, नहीं तो छोड़ी। ओह सॉरी, माय अपॉलॉजी, टैक्स गुरु इज हियर, अब इनडायरेक्ट टैक्स गुरु, वो बोलेंगे और मुझे तो एक लेक्चर देने जाना है, तो मैं उनका 2 मिनट सुन के हाथ जोड़कर विनती है मुझे जाने देना। और आपके, मैं तो भूल गया सर, मैंने देखा ही नहीं, याद आ गया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। इनफैक्ट सभी मेंबर्स को वॉइस ऑफ सीए की तरफ से हम लोगों ने एक ईमेल भी फ्लोट करा है कल रात को 12 बजे, वेयर वी हैव गिवन अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ डीटी आईडीटी क्लॉज वाइज विद द ब्लेसिंग्स ऑफ आवर मेंटर्स, तो वो भी आप देख सकते हैं। मूविंग ऑन, आई वुड नाउ रिक्वेस्ट I would like to request GST Guru and our mentor of Voice of CA, C. Ashok Batra sir, for his deliberation on A to Z of indirect taxes. Sir, please. Welcome. Good afternoon, friends. There was a time when myself and Guruji used to deliberate on the budget session. So the organizer used to make it a point that Mr. Batra speaks first so that people will stay there. And when GST came, there was a time when Guruji की भाषा में हमारी दुकान ज़्यादा चलती थी. But anyway, still we had a good audience left, so I think now people are interested in GST more. Anyway, friends, अगर 110 क्लॉज डायरेक्ट टैक्सेस की आई तो 110 से 153 43 क्लॉजेस जीएसटी में भी आए। लेकिन उन जीएसटी क्लॉजेस में 17 क्लॉजेस सिर्फ कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट है बिकॉज ऑफ द न्यू प्रोविजन 74A बीइंग इंसर्टेड। कुछ क्लॉजेस कॉन्सिक्वेंशियल हैं बिकॉज जो अमेंडमेंट सीजीएसटी एक्ट में की है वो आईजीएसटी एक्ट में और स्टेट में भी की है।
So now I'll go clause by clause and we will discuss it. Any question you can ask in between also. Friends, पहले they intend to change charging section 9 of CGST, corresponding section 5 and 7A of IGST and SGST also. Denatured ENA and rectified spirit used in the manufacture of alcoholic liquor for human consumption is outside the scope of GST when this action will be notified. There have been a lot more litigation on this, but it has another implication, and that is on the availment of ITC in case you are dealing in that product and that has become non-GST supply. So obviously you have to apportion your ITC in terms of section 17(1) and 72. Friends, another amendment has been done. In my humble opinion, that amendment is being proposed to look at the lottery industry, insurance industry, because in those two industries, there have been lot more demands which is being created. And because of industrial practice, they have never collected tax. So on the line of section 11C of Central Excise Act and section 28A capital of the Custom Act, they intend to propose a section 11 capital A, wherein the government has got a power to regularize the non-payment of GST or short payment of GST if you have not collected because of any practice in the trade. We all know the lottery business, 10,000 crore demand is being proposed. They have not collected the tax because of industry practice. I think there is some compromise formula which is coming in the government, consideration of the government. So therefore, they have introduced this section 11 capital A. And corresponding amendment has been made by introducing section 6 capital A, 8 capital A in IGST and UTGST also. Then friends, another important amendment is in section 13, which deal with the time of supply. I will deal this amendment along with 31(1)(f) also. When you are liable to pay tax under reverse charge, you are supposed to issue the invoice. But in that case, there was no time limit being prescribed. So far as supplier was concerned, you were supposed to pay the tax after 60 days from the date of invoice in the case of services and 30 days in the case of goods. Now they say the date of invoice will be the date when you are supposed to discharge the liability. For that purpose, section 13 and 31(1)(f) has been amended. कोई ऐसा फाइनेंस बिल नहीं आ सकता जिसमें आईटीसी के इश्यूज ना डिस्कस हो या इफेक्ट ना हो. इसी तरह से सेक्शन 16 जिसके सिर्फ 4 सबसेक्शन थे, 16(4) has been subject matter of litigation before various high courts, and now most of the high courts have upheld the constitutional validity of section 16(4). That's a different issue, whether there is a violation of 16(4), and 16(4) is when I claim the credit in my books of accounts or I report into 3B. I'm not going into that, look into the time constraint also because I have to deal all the amendments. So section 15 and section 16 subsection 5 and 16 is being inserted. Section 16 subsection 5 is practically an amnesty scheme, wherein if you have claimed the credit for the years 17-18, 1st July 17 to 31st March, 18-19 and 19-20, then the 16(4) time limit will be 30th November 2021. So wherever in the show cause notices by the states 16(4) issue has been raised and you have filed the appeal against that, in my humble opinion, you can certainly contest it, and when you are appearing before them, either seek the adjournment, because once this section will be notified, then it is a part of the statute itself. It is not a circular notification. So everybody is duty bound by that. So you are likely to get huge benefit in this in case you are already litigating the matter. Then friends, section 16 subsection 6 is there. There was a technical point. Once my RC is being cancelled, I file an application for revocation of cancellation certificate under section 30. And my revocation order comes, let us say, 9 months back or 8 months thereafter. So I filed the return subsequent to that because my RC was cancelled, I was not able to file the return. So my ITC was foregone.
I could not have claimed that ITC because the time limit of 16.4 has gone. Now they have inserted this subsection 6, very clearly specifying that in case your RC is being cancelled and is being restored, if you file your returns for the intervening period within 30 days from the date of revocation of cancellation, इसमें दो टर्म्स हैं, उसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे. एक रेवोकेशन ऑफ कैंसलेशन रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आपको सारा क्रेडिट मिल जाएगा, प्रोवाइडेड दैट क्रेडिट हैज नॉट बिकम टाइम बार्ड ऑन द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ cancellation, not order of revocation of cancellation. This difference need to be kept in mind. So in case that is being done, your credit is restored. So in case you have not contravened 16.4 as on the date when your RC was cancelled by the department and it's been revoked subsequently and you file the return within 30 days, you will get the credit. Then comes section 17.5, which is a block credit. So block credit में लिखा हुआ था कि आप you will not be eligible for ITC in clause I in case that credit has been because of show cause notice under section 74, 120 and 130. So reference to 120 and 130, which was only academic, not practical, has been deleted. And a period up to 23-24 has been stated simply for the reason because this section is going to be unoperational with effect from 1st April 24 because 24-25 we are going to have a new section 74 capital A. Right. After 17, we can go to section 30 when revocation of cancellation. If you look at the various High Court judgment, most of the judgment, even on 19(1)(g) and etc., they have been asking the department restore the registration. Now they are going to give it a statutory backing by inserting subsection 2, wherein they can prescribe the terms and conditions under which the revocation can be done. Revocation. So it is very important to understand. 31(3)(f), I have already dealt with 13. Now we can go to next section, which is 39 subsection 3. When I am deducting TDS, I am supposed to file the return. But as per the existing provision, the return was to be filed only when there was a deduction in that particular month. Now they have amended that section. They say even if there is no deduction, you have to file TDS returns every month, irrespective of the fact whether there is a deduction or not a deduction. After this 39, a lacuna has been clubbed in the case of refund, section 54. Two amendments are being proposed in subsection 3 and new subsection 15 is being inserted. Earlier on, when I was exporting the goods, I cannot claim the credit of ITC if those goods are subject to export duty. But there was a lacuna. In case I export those goods with full payment of tax, there was no bar. So now they have put up subsection 15, wherein 3 is being amended, and with effect from the day when this section will be notified, there will be no refund with respect to the goods which are subject to export duty because they are demerit goods. The government doesn't want. कई बार आप प्याज पे लगा देते हैं, कई बार उस पे लगाते हैं, कई बार टैक्सेबल आइटम पे लगा देते हैं. तो उनका जिस आइटम पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी उस पे ना तो आपको आईटीसी का रिफंड मिलेगा और ना आपको आईजीएसटी का रिफंड मिलेगा अगर आपने उसको विद पेमेंट ऑफ टैक्स भी किया है तो. After 54, section 70, I will say it's a big relief for most of us, क्योंकि जब भी वो सम्मन देते थे तो सम्मन में एमडी का नाम, की पर्सनल का नाम होता था, जो जाने में डरता था. उसे कैन आई सेंड माई ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव. नाउ दे आर प्रपोजिंग ए सेक्शन which is to be inserted in section 70, and you can appoint any authorized representative on your behalf to give a statement. Of course, that authorization has to be coupled with the power of attorney, etc. So that is a big relief. And the department knew it, that these officers are doing money, and then therefore this section has been proposed. After this, a very major change, section 74. Section 73 and section 74, these two sections were there under which show cause notice can be issued. And show cause notice can be issued only under 4 situations. Number 1, non-payment of tax, short payment of tax, erroneous claim of refund, a wrong availment or utilization of credit. इसको बहुत ध्यान से सुनना है because it will have lot of implication on your practical practice also.
So now they say there will be no distinction. We will remove 73. 73 was there when all these four conditions were without fraud, willful misstatement, and suppression. 74 was there when these four conditions were there with fraud, willful misstatement, or suppression. Now, 74 capital A, for any reason if you have not paid the tax, they can serve you a show cause notice. And the time period is 42 months from the due date of filing the annual return. Due date. Not the actual date, due date of filing the annual return. If that is being extended, then that period will get extended also. So it is due date of filing the return on which this can be done. Now you can say that means the person who has not paid the tax fraudulently or the person who has paid the tax because of bona fide belief, both are being at the same place. No, that is not there. अभी भी उन्होंने ये कहा कि अगर आपने फ्रॉड, विलफुल स्टेटमेंट और सप्रेशन का एलिमेंट डिपार्टमेंट नहीं प्रूव करता है तो आपकी जो पेनल्टी है वो 100% ऑफ द टैक्स ऑट टू बी एवेडेड. In the case of where the department doesn't prove it, then it is only 10% of the tax. Another important change, which is good for our profession also, after this 42 months, now the adjudicating authority, which has got only 3 months in the case of 73 and 6 months in the case of 74, to pass the order, now they have given 12 months to the adjudicating authority to pass the order. अभी आपने देखा 17-18 के ऑर्डर आए 3 महीने में, पहले लास्ट डेट्स पे शो कॉज नोटिस आए, विद इन 3 months उसने एडजुडिकेट किया और जैसे एडजुडिकेट किया विद इन 3 months अपील हो गई. सो दैट मीन्स देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्शन टू बी टेकन बाय यू, बाय द ऑफिसर ऑल्सो, एंड एवरीबडी वाज इन अ प्रेशर. सो नाउ दे हैव गिवन 12 months to pass the order, and in case the officer doesn't able to pass the order within 12 months, that period can further be extended by another 6 months with the approval of the higher authorities, which cannot be less than joint commissioner. So that means अब 73-74 को डिस्टिंक्शन नहीं रही. शो कॉज नोटिस आपको होगा 42 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न. 12 महीने 54 और 6 महीने तक एक्सटेंशन. तो दैट मीन्स विद इन 5 years your adjudication order will be in your hand. Unlike in the past pre-GST era when there was no time limit for the passing of adjudication order, and of course the court have held very heavily on the department because in some of the cases those orders were passed after 12 years. They said that if there is no time limit you have to be reasonable. और जहाँ कहीं भी 10 साल के बाद adjudication order पास हुए थे उन orders को delete कर दिया गया. तो ये 74(1) जो सेक्शन आया है 74A, इसके अंदर 12 सब सेक्शन है. They are all replica of 73 and 74. Whatever changes were there, I have already told you. So these are the time limit changes. Penalty position वही है. अगर उन्होंने एलिमेंट फ्रॉड का नहीं किया तो आपने बिफोर शो कॉज या विद इन 30 days पहले पेमेंट थी उसको बढ़ा दिया इन्होंने विद इन 60 days. अगर आप पेमेंट टैक्स और इंटरेस्ट कर देते हैं तो नो पेनल्टी, और अगर नहीं करते हैं और फ्रॉड एलिमेंट नहीं है तो 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट और 10,000 विच एवर इज हायर. 74 में भी वही पेनल्टी प्रोविजंस हैं. 15% बिफोर शो कॉज नोटिस, 25% if you pay the tax within 60 days barring the extension of period, rest is same. 50% if you pay the tax and interest within 30 days after the adjudication order, and finally 100%. So penalty provisions are same, but the quantum of penalty you have to look at it and you have to prove, because the department has to prove the element of fraud, etc. If they fail to do so, then the amount of penalty will be only 10%, failing which the penalty will be 100%. That is the important change which you have to see. Then after 74, 75 2A is also being proposed to be inserted. I am sure जो भी GST की प्रैक्टिस करते हैं या करना चाहते हैं उनको सेक्शन 75 और 126 जरूर पढ़ना चाहिए, बिकॉज जनरल प्रिंसिपल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स, इसमें वो सारे उन्होंने प्रिंसिपल फॉलो किए जो पुराने पीरियड में प्री GST इरा में सब्जेक्ट टू लिटिगेशन थे और सुप्रीम कोर्ट के बाद डिपार्टमेंट ने जिनको एक्सेप्ट कर लिया. अब मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. आई एम सेइंग व्हाट इज द चेंज इन दिस फाइनेंस बिल. 75 2 कैपिटल A इज प्रपोज टू बी इंसर्टेड. डिपार्टमेंट ने आपको पेनल्टी लगा दी 100%. आप अपील में गए, कई डिपार्टमेंट ने जो पेनल्टी लगाई गलत है बिकॉज दे आर नॉट एबल टू प्रूव फ्रॉड एक्सेट्रा.
then 75 2A says if that is being the order, then the amount of penalty is also to be re-quantified and it will get reduced to only 10%. So for that purpose, 75 2A is being inserted. After 75, now we can go to section 107 and 112, both can be taken together, because 107 deal with the appeal to the commissioner and 112 deals with the appeal to the tribunal. दोनों में एक common change, the amount of pre-deposit where the maximum amount was up to 25 crore under CGST, 25 under SGST, so 50 crore was the maximum amount, that has been reduced to 40. अगर हम बात 112 की करें जहां अपील टू द एपेलेट ट्रिब्यूनल है तो उसमें 2 और अमेंडमेंट हुई हैं. एक अमेंडमेंट ये हुई है कि जब डिपार्टमेंट की अपील फाइल होती थी दे वर गेटिंग 6 मंथ पीरियड, हमें 3 महीने का पीरियड था, विद द पावर टू द ट्रिब्यूनल टू कंडोन द पीरियड फॉर अनदर 3 मंथ्स. तो 6 महीने में हमें अपील फाइल करनी होती थी. अब उस 6 महीने को उन्होंने 9 महीने कर दिया. भाई 6 मंथ डिपार्टमेंट की अपील है और 3 महीने ट्रिब्यूनल को पावर है टू कंडोन. So in the case of departmental appeal before the tribunal, it can be into 9 months. और तीसरी जो उन्होंने चेंज की with regard to 112, वहाँ भी प्री डिपॉजिट आपका 20% ऑफ द टैक्स. मान लीजिए आपके 100 रुपये की डिमांड निकली, कमिश्नर अपील पे 10% जमा कराएंगे, इन एडिशन टू 10% आपको 20% और जमा कराना था. अब उन्होंने कहा 20% नहीं, आपसे 10% ही जमा कराएंगे, विच अकॉर्डिंग टू मी इज ए वेरी वेरी बिग रिलीफ. Now the amount of pre-deposit is only 10% of the tax before both the authorities, before the commissioner appeal also and before the appellate tribunal also. So these 3 changes. Then I can come to section 109, which is again an important change, and I'll take 171 section along with this. 109 deals with the power has been taken by the government to authorize appellate tribunal to act as a anti profiteering authority. उन्होंने एक और पावर भी ले ली कि where whatever cases can be decided by the principal bench that can be stated by the government. इन 2 पावर के अलावा तीसरा उन्होंने कहा जी एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी के जो केसेस हैं वो सिर्फ प्रिंसिपल बेंच सुनेगी. और 171 में चेंजेस प्रपोज कर दी कि they will fix up a date after that anti-profiteering authority will not accept any application, or explanation में define कर दिया what is explanation. That means wherever you are not passed on the ITC or reduction in the tax rate to these. So I see it is a sunset clause and likely to be over. 171 will have a very limited shelf life according to my understanding and according to the proposal which are being made in this finance bill. After this, we can move to another section 122(1)(b), which deals with the penalty. That penalty was economic commerce operator, and that penalty was leviable if they permit any unregistered person to do business on their platform, if they permit any person to make interstate sale where he is not permitted to do so, or where they gave a wrong statement, and the amount of penalty was 10,000 rupees or the amount of tax involved. That was the existing provision applicable to all economics operator. So they said, if we are not subject to deduction of TDS, why these provisions are applicable to us? So now it is being rectified from the day when the section was being originated. It is again a retrospective amendment, and they clearly provided only those economic commerce operators who were supposed to deduct tax under section 52, they shall alone be responsible for this. Now, विवाद से विश्वास तक तो क्या आएगी या नहीं आएगी इनकम टैक्स में, जो आया वो आपने देखा. हमारे यहाँ एक सेक्शन ही इंट्रोड्यूस कर दिया है परमानेंटली 128 कैपिटल A. इट इज प्रपोज टू बी इंसर्टेड एंड इट इज प्रैक्टिकली ए एमनेस्टी स्कीम फॉर द पीरियड 1 जुलाई 2017 टू 31 मार्च 2020, यानी 17, 18, 19, 20 के लिए एमनेस्टी स्कीम है. 3 सिचुएशन उन्होंने एनालाइज किए हैं. सिचुएशन नंबर 1, where the show cause notice has been issued but no order has been passed. Situation number 2, where show cause notice has been issued, order has been passed under section 73, but no order has been passed by the Commissioner Appeal under section 107. Third situation, where show cause notice has also been adjudicated. Appeal, Commissioner Appeal has also passed the order, but that order is pending before the
ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 113। इन 3 सिचुएशन में उन्होंने कहा कि अगर आप अपना टैक्स जमा करवा देते हैं बाई स्पेसिफाइड डेट, प्रेस में उसकी डेट 31 मार्च 2025 थी जब 53rd जीएसटी काउंसिल आई, बट इस फाइनेंस एक्ट में वो डेट नहीं मेंशन की गई है। इफ यू पे द टैक्स विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर इन द केस ऑफ अपील और एजुकेशन, then there will be no action and the case is deemed to have been concluded and there will be no interest and penalty. So the waiver is for the purpose of the scheme, the waiver is interest and penalties. Tax has to be paid fully. Tax में कोई concession नहीं दिया। अब उन्होंने कहा जी नोटिस 74 में इशू कर दिया, आप 73 की बात कर रहे हैं, और डिपार्टमेंट फ्रॉड का एलिमेंट प्रूव नहीं कर पाया, तो आपने सर्कुलर में भी कहा कि दैट विल बी ट्रीटेड एज ए नोटिस अंडर सेक्शन 73। तो उन्होंने कहा जी उन सब केसेस में भी वो एलिजिबल होंगे जहां नोटिस 74 में हुआ एंड डिपार्टमेंट हैज नॉट बीन एबल टू प्रूव द एलिमेंट ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन। एम आई क्लियर? थर्ड, उन्होंने ये कहा कि अगर आपकी अपील पेंडिंग है तो यू हैव टू विड्रॉ द अपील। चौथा, उन्होंने ये कहा कि अगर आप इस स्कीम में जाते हैं तो आप अपील नहीं लाई करेगी। उन्होंने ये भी कह दिया कि ये स्कीम इरोनियस रिफंड वाले शो कॉज नोटिस में नहीं लगेगी। और सबसे खतरनाक बात ये कह दी कि जिन लोगों ने इंटरेस्ट पेनल्टी जमा करा दी घबरा के और लिटिगेट नहीं किया, उनको वो रिफंड नहीं मिलेगा। Am I clear? So in nutshell, this is the scheme. You just sit down and decide wherever you want to go for it. Wherever there are appeal, you have to withdraw the appeal and file the declaration. That declaration yet to be notified. We will see when the declaration will come. अभी कोई declaration आई नहीं है। After this 128, there is one amendment in 147 that was only to improve the language of the section. Transitional credit में ISD का credit transfer होता था if the invoices are being received on and after the date of implementation of GST. So there was a question if the invoices have been received prior to the date of implementation of GST, what will happen? So they have clarified now whether the invoice has been received prior, on or after, if you are eligible to transitional credit for the ISD, you can still take that benefit. After this amendment in section 140, I have already dealt with 171. Then there are 2 changes in Schedule 3. Schedule 3, we all know, deals with the supplies which are neither being treated as a goods or a services, as a result of which no tax can be levied. And in case you look at the proposed amendment, they intend to insert 2 paras, para 8 and 9 into that. In the case of co-insurance, दो आदमी मिले, रिस्क एलिमेंट वाज ह्यूज, तो उसने कहा भाई ठीक है हम दोनों मिलकर इंश्योरेंस करते हैं। तो उन्होंने कहा जी अगर को इंश्योरेंस ने पूरे प्रीमियम पे लीड, को इंश्योरर में एक लीड इंश्योरर होगा, एक सपोर्टिंग होगा, तो लीड इंश्योरर ने अगर पूरे अमाउंट पे टैक्स जमा करा दिया तो जो सपोर्टिंग इंश्योरर है उसको टैक्स जमा कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कराता है तो उसको क्रेडिट मिल जाएगा। सो ओनली ए फ्यूटाइल एक्सरसाइज, एंड दे हैव वेरी क्लियरली स्टेटेड in Schedule 3 also, कि service provided by the co-insurer to the lead insurer will not be treated as the supply of goods and services. Similar proposal has been made with regard to insurance to reinsurer. मैंने एक insurance कर ली, I find the risk is very heavy, I go to another person to share the risk, and in that case if I have paid the tax on the whole commission, then obviously reinsurer need not to pay the commission. So that is being done to help the insurance industry so that their administrative work can be done. There is no financial implication. अगर मैं टैक्स देता तो क्रेडिट लेता, तो अब टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। So these are the amendments which are being proposed. Now I open for question answer session. Sir. No. They are very clearly stated. So over to organization now, and I thank to each one of you for providing a patient hearing. Yes. 2 minutes. There is a lucky draw. Just wait for 2 minutes. हेलो, उतनी देर में मैं कंक्लूड कर दूं, क्योंकि जो हमारे जितने भी मेंबर्स ऑनलाइन वेबकास्ट के थ्रू ज्वाइन किए हुए हैं
फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील अपॉलॉजी कि हमारा थोड़ा डिले शुरू हुआ ड्यू टू वेबकास्ट वेंडर, वो हमारे ड्यू टू रेन फंस गए थे रास्ते में। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मैंने स्टार्टिंग में यही कहा था कि ऑन बिहाफ ऑफ वॉइस ऑफ सीए एसोसिएशन एंड टैक्स लॉ एडवोकेट सोसाइटी हमने ये फिजिकल प्रोग्राम ट्रायल किया है आफ्टर कोविड। बिफोर दैट ये प्रोग्राम कंटिन्यूसली चलते थे। गिरीश ऊर्जा जी उसके मेंटर हैं और रवि गुप्ता जी उसके प्रेसिडेंट हैं और टेल सोसाइटी चलाती थी। अब वोका ने इनके साथ मिलके और गुरुजी का फर्स्ट प्रोग्राम वेबिनार शुरू किया था। एंड आई एश्योर यू ऑन बिहाफ ऑफ वॉइस ऑफ सीए एंड सीए एसोसिएशन दैट दिस विल कंटिन्यू एंड विद वन रिक्वेस्ट कि संजय भाई को हमने 400 पार की तरह मतलब बीच में नहीं लटकाना कि वो मेजोरिटी पे ना पहुंचे, हमने इनको जिताना है विद गुड नंबर और एटलीस्ट हमने 1 to 6 में लेके आना है। विद दिस फोल्डेड हैंड आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने हमारे साथ बियर किया। 1 घंटा हमारा लगभग ऑनलाइन प्रोग्राम डिलेड शुरू हुआ, तो हम आगे भी आपसे कनेक्टेड रहेंगे। बत्रा जी का भी जो प्रोग्राम है हम इन डिटेल जीएसटी के ऊपर दोबारा वेबिनार सेशन रखेंगे और गुरु जी के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे रिलेटेड टू बजट प्रोविजंस। आफ्टर 10-15 डेज जब उनके बजट के सेशन खत्म हो जाएंगे तो वो स्पेसिफिक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू बजट, कोई भी आपके मन में है, दैट विल बी पोस्ट पासिंग द बजट। अगर उसमें भी कोई अमेंडमेंट्स आती हैं तो उसके बाद वो सेशन रखेंगे ताकि आपकी कोई भी क्वेश्चन रह गया तो आप 1 to 1 उनसे क्लियर कर सको। दैट विल बी टोटली वर्चुअल सेशन। विद दीज वर्ड्स once again I thank you all for joining us online as well as offline. Over to Neha for final conclusion. Mike. Membership number 87549. Are you with us? Please, sir. Please join us on the stage. 523109. Please join us here. Five 17241. नाम है नहीं सर इसमें 517 402912 चले गए, एक रह गया हमारा लकी विनर कोई 533967 नहीं मिल रहा है सर, लकी विनर हमारा तीसरा 508433 90805 92907 87364 527145 85629 कोई यार कोई झूठा मोटा ही आ जाओ सर, आप बुला लो किसी को अपनी मर्जी से बत्रा जी का और अरुण जी का तो जेडे काम ले आए चलो मैं देना आ जाओ सर, आ जाओ कोई नहीं।